Let's start our talk on the GI radiology. Yes. So we will cover the radiology of abdomen system, in which we will cover the ultrasounds, abdominal x-rays, barium studies, upper barium studies, lower barium studies. We're going to cover all that. Okay. So let's Yes. start with this GIT radiology. This is this picture is just, you can see in front of you. You all know that about the different parts of the GIT: esophagus, stomach, duodenum, small intestine, large intestine. Where is the position of the cecum? This is also very important. And then you can see the colon, and this part is your sigmoid colon, and then it ends into the rectum. Okay. So we will see how the small intestine will look on the X-rays, how the large intestine will going to on the X-ray. The important thing in this diagram is this duodenojejunal, this duodenojejunal, just duodenojejunal flexure is an important part over here, which is lying. Okay, let me take a second. Okay. So I talk about the duodenojejunal flexure. You should see this duodenojejunal flexure is lying on the left side. This is very, very important, especially when you are dealing with malnutrition. So you should know the exact position for that. Okay. So let's move. So this is the first case. So you can see the radiology over here. What you can appreciate in this radiology, just let me know first by yourself. What इसमें तो डबल बबल साइन नहीं लग रहा कि गैस्ट्रिक स्टमक में भी गैस है और साथ में इधर भी दूसरा भी गैस शेडो है. Very good. So this is a double bubble sign. Absolutely right. Okay. So यहाँ पे आपको नीचे कोई, there is no gaseous or gases in the lower abdomen, and you can just appreciate the two bubbles. So most likely this is an obstruction, or most likely the upper obstruction. Because ड्यूटीनल whenever you एट्रीजिया. are dealing, we are two types: upper GI obstruction and the lower GI obstruction. So when we have upper GI obstruction, the bowel gases in the lower stomach will not be there. The stomach will be more like a white. So you can just appreciate either stomach, either, two bubbles or three bubbles. It depends. So if you have a problem at the level of, for example, the pyloric stenosis, we will going to look at that as well. So that in that situation, you will going to observe only the single large stomach shadow. But if you have a problem at the duodenum level, then you will going to you can see these two bubbles. When there is a problem at the jejunal, especially the upper obstruction at the jejunum level, then you can see the three bubble signs as well. Okay. So, but if you can do not see any gases in the lower abdomen, that is why most likely this is a ड्यूटीनल एट्रीजिया है ना. okay. So next we can see over here तो ये ड्यूटीनल एट्रीजिया है ना मैडम. duodenal atresia. Of course, this is duodenal atresia. And you can see over here, this baby ka problem was reviewed on the postnatal ward for poor feeding, and the bilious vomiting was there. So it's a double bubble gas in the stomach and the proximal duodenum, duodenal atresia, that is more associated with the Down syndrome. And you can see this double bubble in ultrasound as well. So you can see when you go for the ultrasound, you can also appreciate these two bubbles on the ultrasound as well. These two black cavities on the ultrasound as well. Now we have this another picture. What you can see in this picture, what you can see in this picture, this is the same picture. Then you can also appreciate two bubble sign in this X-ray as well. Now this we are dealing with the duodenal. Now we have triple bubble. So where you can see the triple bubble. So this is the X-ray within the jejunal atresia. So this is you can find in the triple bubble sign. Can you appreciate three bubbles in this X-ray? Yes. यस Okay. यस. One with ड्यूटीनल the, एट्रीजिया. yes, this is a jejunal atresia. The one bubble has a
this NG tube in it, then which is marked by red arrow, then the green and the blue arrow. So this is the triple bubble sign you will find. And you can see over that there is a no gas in the rectum area. The lower area is quite clear. So that is why it shows that again this is upper GI obstruction. Okay. Now the next case, what is this case? We have already discussed this case in the chest X-ray. What you ये can तो see over here is the इससे coiling फेदल of the एट्रेजिया है, हाँ, coiling of the NG tube. yes. यहाँ पे आपने बताया this is esophageal atresia, but you have to decide whether this is atresia is associated with fistula or not. तो For फिस्टुला fistula, के लिए गैस्ट्रिक शेडो, गैस्ट्रिक बबल देखना है, गैस स्टमक में एयर देखनी है ना, अगर वो एयर है तो फिस्टुला इस है, एक्सरे अगर में नहीं अप्रिशिएट हो रही है आपको? कैन यू अप्रिशिएट ऑन एक्सरे? यस मैडम, लग तो रही है. Yes, that is yes. You are absolutely right. This is a gas bubble. This is gas bubble. Okay, so this is tracheoesophageal fistula with esophageal atresia. So there are two conditions either associated with fistula or not. So yes, this you are absolutely right. Now we can see the other pictures as well. So what was the complaint? So this 6-hour-old boy was admitted to the neonatal unit with choke and cyanosis. So if there is history of during feeding, if there is history of choking, think about tracheoesophageal fistula along with atresia. So you can, we have already discussed the finding of this X-ray. Now we can see the esophageal atresia without tracheoesophageal fistula. Can you appreciate the gas over here? नो So मैडम, you have इसमें two नजर नहीं types आ of रही. X-ray in which the NG tube you cannot insert anymore. It's the first X-ray is showing that the coiling of the NG tube, and the second X-ray shows that the NG tube is you cannot insert anymore. Okay, you just stuck over here. There is no such coiling is there. But when you see over this area, there is no gas bubble. So this is the one which is only esophageal atresia is there without any associated fistula is there. Okay. अच्छा, इसमें And क्वाइलिंग नहीं, इसमें क्वाइलिंग नहीं हो रही ना? क्वाइलिंग नहीं हो रही, वो वहीं पे जाके ब्लाइंड एंड पे जाके स्टॉप हो रहा है, अंदर फर्दर इंसर्ट नहीं हो पा रही है एनजी ट्यूब। ठीक है मैडम, और ये साथ में यूवीसी भी है ना? नीचे तक नहीं आ रही, आपने एनजी डाली डाली लेकिन आपको वो नीचे तक नहीं गई, जस्ट ऊपर तक ही नजर आ रही है। तो इफ द एनजी ठीक है, ट्यूब इज क्वाइलिंग जस्ट ऑन द जरूरी नहीं है, हाँ, क्वाइलिंग हाँ जरूरी नहीं है, क्वाइलिंग यस, जरूरी नहीं क्वाइलिंग है. जरूरी नहीं है, यस ठीक क्वाइलिंग है, ये जरूरी, क्वाइलिंग हो रही है दैट इज कैरेक्टरिस्टिक साइन, बट यू कैन आल्सो सी विदाउट क्वाइलिंग एज वेल कि एनजी जो है वो अपनी प्रॉपर पोजीशन में नहीं है, कहीं बीच में स्टक होके रुक गई है। ठीक है, ये साथ में यूवीसी है ना, ब्लैकल वेन के तरह? ये वाली जो लाइन आ रही है आपकी, ये वाली यूवीसी है जो आपके फर्स्ट एक्सरे में जो शो हो रही है, ये जी जी यूवीसी। और बाकी चेस्ट लीड्स है, आपको बी वाली के अंदर वो जो सारे वायर्स नजर आ रहे हैं जी वो जी, वो आपके अलग। चेस्ट लीड है. ठीक है, तो ये आपने यहाँ पे अप्रिशिएट कर लिया। अब देखिए यहाँ पे भी वही चीज है कि एक तरफ आपको अब ये विथ फिस्टू, ये वाला जो है इसमें गैस बबल नजर आ रही है ए वाले के अंदर, यू कैन अप्रिशिएट ये विद फिस्टूला है। बी वाले के अंदर आपको एनजी ट्यूब है बट वो अंदर इंसर्ट नहीं हो रही, यू कैन नॉट अप्रिशिएट गैस बबल, दिस इज विदाउट फिस्टूला। ओके, तो दिस इज द, अब इन्होंने ये क्या काम, ये क्या किया आपका अपर जीआई कंट्रास्ट स्टडी की है। ठीक है, बेरियम मील भी कह सकते हैं। तो व्हाट यू कैन अप्रिशिएट ओवर हियर, यू कैन अप्रिशिएट द इसोफिगस। जब आपने बेरियम डाला तो यू कैन, व्हाट यू कैन अप्रिशिएट इन दिस पिक्चर इज दैट this is the barium. Okay, this is the this is upper GI esophagus. Why it is because of the barium. And what you can appreciate here that there is a connection, this is a small connection, and the dye is also you can see in this part as well. So to look for the fistula especially, you need to do the upper GI studies, where is the level of the fistula. Okay, so for that what you can appreciate in this is a clear cut fistula. And the another thing which you also can appreciate that it is ended, the dye is ended somewhere over here. You cannot see proper dye in this area, a very little dye. So the connection is lost, the it is not proper, it is ended in the blinded pouch, it ends in the blinded pouch, and it is associated with the connection which is called it as a fistula. So this is the GI upper studies which we can see this thing clearly, very clearly in this X-ray.
Now you can see, you can appreciate fistula more clearly in this as well. But this type of fistula is more like a H type rather than, you can say, N type rather than H type. So this is not that much important, but you can see the esophagus is in continuation. Okay, there is no blinding, but you can see there is a connection over here at this level. So it is more like a H or M type. These are also, you can see over here, the fistula is there, but esophagus is going into continue but slightly narrowing at this area. So the barium meal, or you can see the upper GI contrast studies, will give you more clear picture about the fistula. Okay. यस So मैडम. yes, so these are the H-type fistulas are over there. There will be no blind-ended esophagus in this situation, and it will continue into the stomach, but there is a fistula is over there. So these two are H-type. Now, what you can see over here before reading the scenario, what you can appreciate, abdominal X-rays has a very limited role nowadays because of the fast ultrasound is there, CT scan is there, so many pathologies were picked up on it. So now we are limited role for abdominal X-ray. What you can see if this that कि यहाँ पे आपको abdominal distension नजर आ रही है, overall gaseous हाँ, distension नजर आ रही है, ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं you है. can appreciate. बट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे आपको क्या नजर आ रही है, इस ये अगेन दिस साइड इज वाइट है, आपको केवल एम्प्टी है नीचे तक. हाँ, नीचे तक एयर नहीं जा रही तो ऑब्स्ट्रक्शन होगी ना फिर. ऑब्स्ट्रक्शन. बट व्हाट यू कैन सी ओवर हियर एट दिस एरिया, इस एरिया में ये चीज नहीं है. ठीक है, यू कैन क्लियरली सी दिस एयर इन दैट एरिया. So this is an inguinal area. Okay, so this, what do you mean by that? If you can find the air in your inguinal area, see the pelvic, no air in the pelvic area. If I just delete that, there is no air in the pelvis. Okay, see, no air in the pelvic, no air in the rectum area, but you can see this in a inguinal area. So most likely this is an obstructed inguinal hernia. Why obstructed inguinal hernia? Because you can appreciate the gas shadow, or you can see the intestinal gas shadow in the inguinal region, and no gas in the rectum and below region. So that is why it is associated with obstructed inguinal hernia. Okay. So what will now we read the scenario, and what we see the gaseous distension throughout. Throughout we can appreciate the gaseous distension. In this X-ray, it is very difficult to comment that with whether this is a large gut obstruction or the small gut obstruction. But there is a general rule. Rule is there most of the time the small bowel resides in the centrally, small bowel resides centrally, and the large bowel resides peripherally. Okay. And in the large bowel, we have haustra. Okay. So haustras are like that, like this. They are haustra. They do not meet in the midline. They do not meet in the midline. They do not traverse through the bowel. They are just like that. So if you can see this over here, I will show more pictures as well. So if you can see, these are the haustras are there. So this periphery, you have this large bowel intestine. That they do not traverse throughout the bowel. They will not cross the midline. So these are the large bowel at the periphery, and this is the centrally most of the time you have a small intestine. Okay. So if you can further read the scenario, what was the scenario? So the scenario is, this is a 3-month-old boy in AE, was with inconsolable cry, abdominal distension, and vomitings were also there. What abnormality on abdominal radiograph? What is the diagnosis? So what abdominal we see, this is a probably lower GIT obstruction is there. Secondary to left inguinal hernia showing gas filling multiple dilated loops. So most likely this is an obstructed inguinal hernia. Now what you can see in this, first of all tell me which ये कौन सी study है? Is this a simple plain abdominal like ultrasound, X-ray, or it is a upper GI contrast study? अपर जी कंट्रास्ट है मैडम. Very good. So this is most likely an upper GI contrast study. Now can you appreciate the duodenojejunal flexure on the right location in this X-ray, which I showed ये you मैडम anatomically? माल रोटेशन तो नहीं है. Yes. Or देखो, you can see that duodenojejunal flexure is
all lying on the right side. So you can see it is not crossing this midline. All of the jejunum, duodenojejunal flexure, everything is lying on the right side. So this is a malrotation. So you are dealing with at this time only the malrotation. And this is ये your तो right हाँ, upper ये GI तो मैडम contrast. ये Huh? सेम पिक्चर इसी तरह टॉक्स में आती थी तो इसलिए मुझे याद है। वैसे हाँ, सब एग्जैक्ट ये लेफ्ट साइड पे जो वाइटिश है ये क्या चीज हाँ। है मैडम? ये जो आपका whitish, ये वाला जो whitish area you are talking about this नहीं नहीं, लेफ्ट साइड पे ये बड़ा। वाला आपका स्टमक है ना? This is the stomach. ये और स्टमक में ये राइट आपके साइड आ पे, रहा है. राइट साइड पे। Yes, this is the right side. You are talking about this under level. जी This जी। this is whole the jejunum. ये आपका अच्छा। पाइलोरस है. This part is your pylorus. ये वाला part ये आपका stomach है. This is whole the duodenum and the jejunum, everything. What I told you, it should be like this. यहाँ पे आपको left side पे duodenojejunal flexure यहाँ बनना चाहिए. There is no gut over here. Everything is residing on this right side. That is why you call it as a malrotation. यस मैडम, यस। Okay, I'll show you the plain one, the normal picture as well. I put it the normal picture as well. So just look at the picture. So this is most likely the malnutrition picture. And what you find in the malnutrition, a second day old baby who was reviewed on the postnatal ward, breastfeeding is well established, and he has passed a small amount of meconium on the day one. There is now a 6-hour history of bile stain vomiting. So bile stain vomiting on the second or third day of the life is most likely malnutrition. If it is a bile stain vomiting on the first day of life, then most likely it's a duodenal atresia. So what is this study? You already told, contrast study. What abnormality is shown? Abnormality is shown that the duodenojejunal flexion and all the jejunum is lying over the right side. And what is the diagnosis? This is most likely the malformation. Okay. Oh, sorry. Okay. So this is most likely आपकी ये रहा ऊपर. So what you can see over here, this is upper GI contrast study. Duodenojejunal flexure along with the small proximal small bowel lying abnormally to the right of the midline, that shows the malrotation. And if you can see the abdominal x-ray in that scenario, abdominal x-ray may, because it is the problem is related to the upper obstruction, because vomiting, bilious vomiting is there. Most likely this is an upper obstruction. So if you see the only the plain x-ray, then what you're going to find out, you will going to find out the stomach, bubble of the stomach, and you can see this duodenum as well. Okay, so this is the x-ray of the upper GI obstruction. It will not give you exactly the malrotation. It is simply telling you that upper GI obstruction. So mostly the gas bubble and the small proximal duodenum you can appreciate in this abdominal x-ray. Okay. लेकिन प्लेन एक्सरे से थोड़ा डिफिकल्ट होगा माद Yes, रोटेशन plain डायग्नोस X-ray is करना। not going to be diagnostic. So whenever you are suspecting bilious studies, आपने डबल बबल इसमें कैरेक्टरिस्टिक साइन नहीं है, आपने उसमें डेफिनेटली जीआई कंट्रास्ट स्टडी करनी है टू डायग्नोज दैट कंडीशन. So this is the sixth. सेकंड डे पे बिलियस वोमिटिंग होगी तो माद रोटेशन का सोचेंगे, अदरवाइज फर्स्ट डे पे तो डिविजन एट्रीजिया Yes, होगा। duodenal atresia. Duodenal atresia will present on the first day. फर्स्ट डे के बाद प्रेजेंट करिए कोई चीज, थर्ड डे पे करिए, फोर्थ डे पे करिए, सिक्स डे पे करिए, 5 days पे करिए, देन थिंक अबाउट मैल रोटेशन. इनिशियली सही था, फिर प्रॉब्लम शुरू हुआ, देन थिंक अबाउट द मैल रोटेशन. ओके, तब आप यहाँ पे यस। देखो इसमें क्या बताया कि आपको मैल रोटेशन थी तो आपको प्रॉपर ऑब्स्ट्रक्शन वाले साइंस नहीं आ रहे थे. मैल रोटेशन के साथ अगर ट्विस्टिंग हो जाए, गट आपस में, जैसे कि हमने देखा ना कि एक गट है जो खुद ब खुद मुड़ जाए अपने ही एक्सिस पे, वर्टिकल एक्सिस पे गट जो है वो टर्न हो जाए, उसे कहते हैं वैल्वुलस. ये गट है, ये टर्न हो गई है, ट्विस्ट हो गई है, क्लॉकवाइज हो जाए या एंटी क्लॉकवाइज, दिस इज कॉल्ड वैल्व. So what you can see, valvulus also causes obstruction. तो आपको इस पे एक्सरे में क्या चीज दिखाई दे रही है? एक्सरे में यही दिखा रहे हैं ये कि यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है और डेफिनेटली ये अपर जीआई ऑब्स्ट्रक्शन है. That is why you see only the stomach bubble and the proximal duodenum. You cannot appreciate any air in the rectum or in the lower part of the abdomen. So this is the X-ray with malrotation along with the mid-gut valvulus. So we have two types of valvulus. एक है gut का valvulus, mid-gut. एक है cecum का
नहीं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, दैट इज यस, एक सीकम का वैल्वुलस है और एक आपका सिग्मॉइड का वैल्वुलस है. सो यू हैव थ्री टाइप्स ऑफ द वैल्वुलस. सो वी विल सी द एक्स्ट्रा ऑफ द सिग्मॉइड एंड सीकम एज वेल. बट अगर आपकी जुजिनम और वो वाली गट का पार्ट का वैल्वुलस है, दैट इज मोर लाइकली कि वो अपर ऑब्स्ट्रक्शन है. उसमें सिंपल आपको स्टमक का बबल नजर आएगा या प्रॉक्सिमल ड्यूडेनम नजर आएगी. ठीक है. So this radiogram shows markedly distended stomach and less distended proximal duodenum. मैडम वाल्वुल क्या कहते हैं, माद रोटेशन मतलब है विदाउट वाल्वुलस भी हो सकती है और विद वाल्वुलस Yes, भी हो सकती है? yes, yes. So malrotation जो है ना, जस्ट आपकी आपकी पोजीशन खराब, और अगर पोजीशन खराब होने की वजह से यू हैव अ स्मॉल मेजेंट्री, आपकी जो मेजेंट्री है वो प्रॉपरली वो फॉर्म्ड नहीं हुई हुई, वो स्मॉल है. तो इसी वजह से वो गट जो है ना वो अपने ही एक्सिस पे वर्टिकली ही राउंड हो जाएगी. ठीक है, इसको कहते हैं वॉल्वुलस. तो जरूरी नहीं है कि मैल रोटेशन हो तो वॉल्वुलस भी साथ हो. मैल रोटेशन के साथ वेल्वुलस अगर हो रहा है तो वो ऑब्स्ट्रक्शन की तरह प्रेजेंट करेगी, अपर जीआई इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन वाले साइन एंड सिम्टम्स आप. इसी वजह से मैल रोटेशन के बच्चों की दो प्रेजेंटेशन वी डिस्कस्ड इन आवर. आपने कहा था सिक्ल की प्रेजेंटेशन होती है? हाँ, कि एक ओल्डर चिल्ड्रंस के अंदर भी इंटरमिटेंट बिलियस वॉमिटिंग के साथ प्रेजेंट. तो इसीलिए वो इंटरमिटेंट बिलियस है, क्योंकि वो ऑब्स्ट्रक्शन होती है वो हट जाती है. सो इंटरमिटेंट बिलियस वॉमिटिंग, जब बिलियस वॉमिटिंग आ रही दैट मीन समथिंग ऑब्स्ट्रक्शन हो रही. ठीक है. तो न्यू लेकिन नहीं. न्यूनेट में ज्यादातर वो सिक लुकिंग प्रेजेंटेशन होती है, फीवर, सीवियर पेन, इरिटेबल, इस तरह नहीं होती है नहीं, ना? अगर बड़े बच्चे में ओल्डर चिल्ड्रन में सिक लुकिंग नहीं होगी, सिर्फ इंटरमिटेंट वो बिलियस वॉमिटिंग करेगा. यस, मैं न्यूनेट की बात कर रहा हूँ, न्यूनेट में सिक लुकिंग होगी। न्यू नेटल वाले जो है वो सेप्सिस की तरह सिक लुकिंग प्रेजेंट करे. तो मैल रोटेशन एक अलग चीज है कि रोटेटेड पार्ट सही तरीके से गट पोजीशन में नहीं है. दिस इज कॉल्ड मैल रोटेशन. अब उसमें ट्विस्टिंग हो रही है, दैट इज कॉल्ड वैल्वुलस. ठीक है. तो वैल्वुलस जो है वो आपने किस तरह एक्सरे में, ये आपको गट का वैल्वुलस नजर आ रहा है, सीकम का वैल्वुलस और सिग्मोइड का वैल्वुलस. अब अभी नेक्स्ट पिक्चर्स में और देखेंगे. अगेन आपको यहाँ पे क्या चीज अपियर हो रही है इस वाले एक्सरे के अंदर. अगेन आपका जो सारा का सारा पार्ट है that is residing on the right side just below the liver. So what is actually the position? See the actual position. Can you appreciate this picture? The duodenojejunal flexure in the A picture. You can see the flexure is on the left side, and when you see the B side, so everything is on the right side. So if राइट you साइड। see the normal, the normal GI contrast study, can you appreciate that duodenojejunal flexion on the left side in this picture? So just let me mark it. Can you appreciate this part on the left side? So this is just below the gas bubble. Okay. So this is the normal position of the duodenojejunal flexure. So now you can easily pick the malrotation on the barium or upper contrast studies. Okay. So again in this picture, there is a gas bubble. Okay. So this is a newborn with the midgut volvulus. So volvulus is there and high intestinal obstruction. So maybe you just have a distended stomach as well. Only so if you find a bubble in the upper abdomen, no gas, think about GI upper obstruction. Multiple causes are there. Okay. Now we are dealing with other two types of valvulus, the cecum and sigmoid valvulus. So where was the position of the cecum? We already discussed that cecum is lying over here. राइट Cecum, साइड पे, राइट लोअर। right lower side pe, this is the position of the cecum valvulus. So what happened and what is the position of the sigmoid? Sigmoid valvulus is present on this over this region over the left abdomen. लेफ्ट साइड पे, जैसे। Left side पे होगा exactly. So you have a picture of both valvulus. Sigmoid valvulus especially अगर आपको उन्होंने बताया उसमें आपको जो appearance X-ray में मिलेगी, that was coffee bean like appearance मिलेगी. ठीक है. एंड जो सीकम जो होगा ना वो आपको dilated part मिलेगा like this C shape आपको appearance मिलेगी. So this is इस तरह अगर डिफरेंशिएट करने के सिग्माइड जो है ना राइट साइड पे होता है, तो सिग्माइड अगर वाल्वुलस होगा तो लार्ज इंटेस्टाइन डायलेटेड होगा, क्योंकि कोलन वगैरह डायलेटेड होगा। और इधर हम्म. सीकम अगर है, सीकम में स्मॉल इंटेस्टाइन डायलेटेड होगा, क्योंकि अभी तो लार्ज इंटेस्टाइन में गया भी नहीं होगा ना। हाँ, तो उसमें आपको क्या होता है सीकम के अंदर हाँ, आपको ये राइट साइड
ये सॉरी यस, लेफ्ट साइड की पिक्चर है ना ये वाला इसमें पार्ट। ये स्मॉल इंटेस्टाइन लग रहा है ना, यस, स्मॉल इंटेस्टाइन स्मॉल की डिस्टेंशन इंटेस्टाइन है। तो एग्जैक्टली लार्ज नहीं, लेकिन हम इसमें लार्ज सी शेप आपको मिलेगा, इन्वर्टेड सी शेप सेंटर ऑफ द एब्डोमेन में आपको मिलेगा। दिस इज कॉल्ड सीकल वेल्वुलस, ठीक है ना। यस और मैडम, वहां मतलब ये है कि इसमें कोलन की तरह वो हस्ट्रा लाइक डायलिटेशन नहीं है ना, अदर साइड पे नहीं, वो लग रहा है कि कोलन डायलेट हुआ है। अच्छा आपको सिग्मॉइड में भी हॉस्ट्रा टाइप डायलिटेशन नहीं मिलेगी। ये वाली जो मैं पिक्चर है जिसमें कॉफी बीन अपीयरेंस है, मैं आपको दिखाती हूँ एग्जैक्टली उसमें भी आपको क्लियर, जब आपका सिग्मॉइड ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है उसमें भी हॉस्ट्रा लॉस हो रहे हैं, ठीक है, उस सिग्मॉइड पार्ट के। सो जस्ट अच्छा। वी कैन सी दिस पिक्चर, यू कैन सी। ये इसमें एक और चीज आपको दिखाई गई है, ये इसको मैं आपको बताती हूँ। ये इसमें क्या दिखाई जा रही है आपको कि ये आपको अब अगर अभी भी ये आपकी वो है जीआई अपर कंट्रास्ट स्टडी, ये आपका स्टमक बबल है। और ये वाली जो अपीयरेंस है ना, ये कॉक स्क्रू अपीयरेंस है इस तरह की। ये आपकी अगेन कॉक स्क्रू अपीयरेंस आ रही है, अभी भी और पिक्चर्स में क्लियर दिखेंगे आपको कॉक स्क्रू अपीयरेंस। so what you can see over here, see this is कॉक स्क्रू अपीयरेंस। अगर वल्वुलस एसोसिएटेड है मिडगट का, तो ये देखिए आपको कॉक स्क्रू, क्लियर कॉक स्क्रू अपीयरेंस मिले। दिस इज malrotation along with the valvulus, then you will going to see the cock the GI contrast study, okay। so another I have another pictures as ये well। कहाँ का वाल्व है मैडम? यस। ये मिड गट है, यस दिस इज मिड गट, दिस इज नॉट द सीकम, दिस इज मिड गट valvulus, okay। so this is the cock अच्छा, screw appearance, स्टमक के साथ ही बना हुआ है बिल्कुल। see this as well। again can you appreciate the cock screw appearance over here, just like that। so this twisting आपको ये कॉक स्क्रू की तरह ऐसे ऐसे करके ये अपीयरेंस आपको मिलेगी। दिस इज मिड गट, ठीक है। ये अपर जीआई कंट्रास्ट स्टडी में आपको ये सारी चीजें नजर आएंगी और ये आपको बताएगी मिड गट की ट्विस्टिंग भी है, ओके। तो अब हम जाते हैं अपना दूसरी पिक्चर्स की तरफ। okay, so what you can appreciate in this picture, yes this is coffee bean sign। कैन यू अप्रिशिएट कॉफी बीन साइन? अगेन देखिए आपके हॉस्ट्रा लॉस हो गए और आपको ये देखो ये इस तरह की बीच में ये चीज मिलेगी, ये बीच टू साइड आपको नजर आएंगे बड़े से दो लार्ज बबल बाउल बबल की तरह, बीच में इंडेंटेशन होगी, हॉस्ट्रा लॉस हो चुका होगा। दिस इज कॉल्ड sigmoid volvulus और कॉफी बीन साइन। इट्स अ डायलेटेड sigmoid कोलॉन और ये कहा चला गया, अपवर्ड मूव हो जाएगा। इधर मौजूद था sigmoid, तो जब डिस्टेंडेड हो गए इट मूव अपवर्ड, loss of hostration, along with that you have this indentation, most likely this is a coffee bean sign, giant coffee bean sign you can appreciate over here। so let's see further pictures of coffee bean signs, this is a characteristic। now they show you two different signs, can you appreciate this? What is this on the right side? What is this? This is, sorry, left, your left side। अगेन दिस इज लॉस ऑफ हॉस्ट्रा विथ टू, तो ये आपको कौन सी साइन मिल रही है? दिस इज मोस्ट लाइकली अ कॉफी बीन साइन। और कैन यू अप्रिशिएट लाइक दिस द सी इन्वर्टेड सी अपीयरेंस ओवर हियर, दिस इज अ सीकम वल्वुलस, ओके। सीकम। मोस्ट कॉमन जो है वो आपके सिग्मॉइड वॉल्वुलस है कंपेयर टू द सीकम। सो दिस इज कॉफी, कॉमन कॉमन सिग्माइड है। हाँ ठीक है मैडम, ठीक। सिग्मॉइड वॉल्वुलस कहीं पे भी जा सकता है, उसकी पोजीशन हमने ऊपर क्या पढ़ी थी, अभी उन्होंने ऊपर आपको पोजीशंस बताई थी कि जब सिग्मॉइड वॉल्वुलस होता है तो उसकी पोजीशन कहीं पे भी हो सकती है। बट जो सॉरी सीकम वॉल्वुलस मूव एनीवेयर, बट जो आपका सिग्मॉइड होता है वो जस्ट मूव अपवर्ड करता है ऑन द, ये देखो ये लिखा है, a volvulus always extend away from the area of twist, ठीक है। तो जहां पे ट्विस्ट है, लेफ्ट साइड का ट्विस्ट है या राइट साइड का, ऑलवेज एक्सटेंशन होगी अवे फ्रॉम दैट। sigmoid volvulus can only move upwards, usually goes to the right upper quadrant, while cecal volvulus can go anywhere। तो cecal volvulus कहाँ से कहीं पे भी जा सकता है, जबकि आपका जो वो कॉफी बीन राइट अपर पे जाएगा। सिर्फ और सिर्फ आपको राइट अपर क्वाड्रेंट में अपवर्ड मूव करता हुआ नजर आएगा, ठीक है। तो ये आपको डिफरेंशिएशन देखनी है क्लियर इसमें। यस, सो व्हाट यू कैन सी ओवर हियर, यस, ठीक है।
तो या राइट अपर विद दिस इंडेंटेशन सिग्मॉइड, और सीकम आपको जो है वो एनीवेयर इट कैन मूव, और आपको ये यहाँ पे ये डायलेटेड लूप मिल रहा है सी शेप का. दिस इज मोस्ट लाइकली द सीकल valvulus. Okay, so these three type of the valvulus you are dealing with it. So if you have a midgut valvulus, you can just see the stomach bubble or maybe the proximal duodenum. If you have a cecum, then you see this inverted C shape can be anywhere. But if it is sigmoid, then you have a coffee bean appearance. So you can see the coffee bean appearance क्यों हो रही है. कॉफी बीन अपियरेंस इस तरह देखें, गट जो है हाँ ये आपको हाँ, उन्होंने आपको बताया कोलन की आपको डेलिटेशन की इस वजह तरह से। से रोटेट कर गई है. ठीक है. So this is the mechanism of coffee bean sign appearance. में बहुत अच्छी coffee bean sign आपको appear हो रही है. You can see this. This is clear. और ये गट इस तरह ट्विस्ट की है. ठीक है. ठीक। कॉफी बीन ये सिग्माइड वाल्वुलस है ना? ये सिग्मॉइड वल्वुलस, सिग्मॉइड वाला एरिया देखें इस तरफ है गट के ना, ये लार्ज, ये रेक्टम आ रहा है. यू कैन सी ओवर हियर दिस, ये पिक्चर देखें, ये रेक्टम आ रहा है और ये आपका सिग्मॉइड एरिया. तो ये सिग्मॉइड एरिया पूरा ट्विस्ट हुआ है. सिग्माइड में ये कोलन फिर डिस्टेंडेड क्यों नहीं हुआ? कोलॉन देखिए जहां पे भी देखो, जहां ट्विस्ट हुआ उसके बाद देखो ये पूरा एरिया कोलॉन ही का तो है, ये सिग्मॉइड का, तो ये सिग्मॉइड डिस्टेंडेड हो रहा है ना. यहाँ पे होने के बाद अब गट यहाँ पे ये पूरी देखो डिस्टेंडेड, ये डिस्टेंडेड पार्ट ही तो कॉफी बीन अपीयरेंस दे रहा है. अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक तो है. सिग्माइड तो लास्ट पार्ट नहीं होता लार्ज इंटेस्टाइन लास्ट का, पार्ट, उसके बाद? लास्ट, ये देखिए ना सिग्मॉइड और ये रेक्टम, ये रहा नीचे, ये आपकी गट है, ये लार्ज, ये आपका डिसेंडिंग कोलॉन है. डिसेंडिंग कोलॉन के बाद सिग्मॉइड स्पेशली इस तरह मैं होता है, सिर्फ ये खुला कह हुआ रहा हूँ होता है. कि सिग्माइड सिग्माइड से पीछे वाला तो सारा डिस्टेंडेड होगा, लेकिन ये जो लंबा राइट साइड पे पड़ा हुआ है ये तो नहीं हम्म. डिस्टेंडेड, सही नहीं आ रहा विदाउट डिस्टेंडेड। सिग्माइड का मतलब है उससे पीछे सारा डिस्टेंडेड होगा, लेकिन सारा डिस्टेंड नहीं है, जो ट्विस्टेड पार्ट है ना सिर्फ वो डिस्टेंड हो रहा है, वो आपको अच्छा। करेक्टरिस्टिक शेप दे रहा है. देखो ये सब ठीक चीजें ठीक ठीक ठीक। है, ये करेक्ट है. बाकी भी गट डेफिनेटली थोड़ी बहुत देखो डायलेटेड है, डिस्टेंडेड है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल 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 बिल्कुल। डिस्टेंडेड नहीं. बट दैट पार्ट बिकम सिग्निफिकेंटली डिस्टेंडेड. बिल्कुल बिल्कुल अब समझ जाइए, जो सिर्फ वाल्वुलस वाला पार्ट है वो डिस्टेंडेड होगा, बाकी में तो कोई हाँ. मसला नहीं है ना वाल्वुलस हाँ में, बाकी बिल्कुल वाले ठीक। पार्ट इतने ज्यादा डिस्टेंडेड नहीं होंगे, लेकिन माइल्ड माइल्ड देखो डिस्टेंशन है, इतना सिग्निफिकेंट डिस्टेंशन जो है उसी एरिया की जो कि इन्वॉल्व हुआ हुआ है. ठीक है. ठीक है मैडम, ठीक है। आपको फर्दर सिग्मॉइड की दिखा दी इन्होंने पिक्चर. तो नाउ व्हाट यू कैन ओवरसी नाउ बिफोर एंड आफ्टर रिडक्शन, वैल्वुलस को हम रिडक्शन कर रहे हैं. ठीक है. तो जब हम रिडक्शन करते हैं तो हमारे पास क्या वेज होते हैं रिडक्शन करने के लिए, हम इसमें हाइड्रोस्टेटिक। भी देते हैं. ठीक है. इंटरसेप्शन को भी जब हम रिड्यूस करते हैं, इंटरसेप्शन को भी रिड्यूस करने के लिए हम क्या देते हैं, एयर अनीमा. तो यहाँ पे देखो उन्होंने आपको क्या चीज बताई है कि ये दो पिक्चर्स दिखाई है, में क्या चीज आपको नजर आ रही है, व्हाट यू कैन सी ओवर हियर, बिफोर एंड आफ्टर रिडक्शन. सो जब वो रिड्यूस सर्जिकली भी रिड्यूस किया जाता है. ठीक है. वैल्वुलस है ना, तो जब आपने देखा पहले जब ऑब्स्ट्रक्शन वाले साइन थे, यू कैन नॉट अप्रिशिएट एनी एयर ओवर हियर. दिस इज द ये बिफोर रिडक्शन है. ठीक है. बिकॉज ऑब्स्ट्रक्टिव वाली पिक्चर आपको मिल रही थी, गैस was not there in the below abdomen, but once you have reduced it, you have correct that, अब आप you can appreciate the gases in the lower abdomen. तो ये रिडक्शन है गैस, वो रिडक्शन ऑफ द वेल्वुलस बिफोर एंड आफ्टर. So valvulus is also present like an obstruction. So always remember valvulus हो, intersusception हो, they all present like a signs of obstruction. What you can see over here, abdomen में भी आपको दो bubbles की appearance लेके ये इस तरह से दो बबल अलग अलग मिल रहे हैं. तो ये कॉफी बीन अपीयरेंस, यू कैन ऑल्सो अप्रिशिएट दीज डायलेटेड पार्ट on the direct stomach as well. Okay, so these are the things which you can appreciate. So what they write about it, simply appearance of the patient's abdomen, two wide ridges were running parallel and Scott view of the abdominal computed CT graph. ये CT graph वो करा गया है, that revealing coffee bean sign also. So in CT you can also appreciate. What you can see in this X-ray, what you can find out इसमें in तो this, मैम एयर फ्लूइड लेवल है, ऑब्स्ट्रक्शन है। सबसे पहले तो ये अपराइट किया हुआ है. ठीक है. आप एयर फ्लूइड लेवल्स आप जब अप्रिशिएट करते हो जब आप पेशेंट खड़ा होकर एक्सरे करवाएगा. जब बच्चा अपराइट सुपाइन, अपराइट है ना ये? यस अपराइट मींस स्टैंडिंग पोजीशन में. ओके. यस जब मैडम। सुपाइन होता है लेटा हुआ होगा,
supine position में you cannot appreciate the fluid level. So you can see multiple air fluid level, again a sign of obstruction. You cannot appreciate any gas below it, and you can appreciate so many air fluid levels. Again, it is a a sign of intestinal obstruction. Okay, so these are the different things. Multiple air fluid levels are there. Okay, what you can see over here in this, इसमें एक चीज आपको बताई थी कि स्मॉल इसमें इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन को डिफरेंशिएशन करने के लिए हमारे पास एक चीज होती है. What we studied that large intestine के जो horstrations होते हैं, they never meet the midlines. They never meet the midlines. मिडलाइन स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं ना, उसके अंदर आपके पास इस तरह के बैंड्स होते हैं. उनका नाम होता है, ये नाम इसका ये है, we called it as a this is just let me, ये circular folds called valvuli convents. Valvuli valvuli convents. These are the circular valves of Kirkrings. तो ये क्या होते हैं? ये सर्कुलर valvuli होते हैं, और ये क्या करते हैं, पूरे सेंटर को, ये पूरे मिड लाइन को मीट कर रहे होते हैं, पूरे ट्रेवर्स कर रहे होते हैं होल बावल को. तो यहाँ पे आपको क्या दिखा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो आपकी डायलेट हुई भी है. पूरा जो आपका एब्डोमेन है वो सेंट्रल, यू कैन व्हाट यू कैन सी, कैन यू अप्रिशिएट, अब आपको यहाँ पे नजर आएगा कि पूरी ट्रांसवर्स हो रही. कैन यू सी दिस वेल्वुला थ्रू आउट द गट, ये ट्रांसवर्स. तो दिस इज कैरेक्टरिस्टिक कि आपकी ये कौन सी है, स्मॉल गट जो है वो डायलेट हुई. एंड आपको लार्ज गट यहाँ पे कोलैप्स दिख रही है. एज सच लार्ज गट बहुत प्रोमिनेंट नजर नहीं आ रही, एंड इट इज रिजाइडिंग इन द सेंट्रल एज वेल. तो दिस इज द स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन. स्मॉल बाउल जो है वो डायलेट हुई है. बेसिकली इट्स अ डायलेटेड स्मॉल बाउल, and you can see the central valvuli which is traversing whole of the midline. So that is why it is a characteristic feature of the small intestine. So you can appreciate, and the large bowel. सेंटर में अगर ये मीट करेगी एक दूसरे को फिर तो ऑब्स्ट्रक्शन होगी ना. और सेंट्रल में मीट करेगी, ऑब्स्ट्रक्शन है बिल्कुल. और ये स्मॉल बाउल डिस्टेंड हो गई ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, बिकॉज यू तो कैन फिर नॉट नॉर्मली अप्रिशिएट सो मच गैस. नॉर्मली भी मीट करते हैं. नॉर्मली भी जो हस्टर है लार्ज इंटेस्टाइन की वो तो मीट नहीं करते, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन की जो बीच में ये एक दूसरे को मीट करती है नॉर्मली भी. यस, नॉर्मली भी मीट करती है, लेकिन नॉर्मली इतनी विजिबल नहीं होती, क्योंकि नॉर्मली इतनी ज्यादा डिस्टेंडेड नहीं होती. तो ये आपकी डिस्टेंडेड होती क्यों है, जब आपकी कोई ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, और डेफिनेटली स्मॉल बाउल में ऑब्स्ट्रक्शन. ठीक है, यहाँ पे आपको लार्ज बाउल नजर ही नहीं आ रही. अगर आपके लार्ज बाउल के लेवल पे ऑब्स्ट्रक्शन होती तो आपको लार्ज बाउल भी नजर आती, जितना भी अच्छा, इसमें प्रॉक्सिमल पार्ट. ऑब्स्ट्रक्शन ऑब्स्ट्रक्शन लोकलाइज तो नहीं हो रही कि कहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है उसके बाद एयर नहीं आएगी, उससे पहले एयर डिस्टेंशन होगी. नॉर्मल यस, ऑब्स्ट्रक्शन की तरह पिक्चर तो नहीं है इसमें. इसमें देखें ऑब्स्ट्रक्शन जो होती है ना, हमें एक रूल पता होता है कि प्रॉक्सिमल टू द ऑब्स्ट्रक्शन द एरिया वुड बी dilated, and डिस्टेंस. हाँ. after that the area would be collapsed, it will not be ये appeared. यस, तो इसमें वो हमने, पिक्चर तो नहीं है. इसमें वही पिक्चर है ना, you cannot appreciate the large bowl. Can you appreciate the large bowl properly in this gut, in तो this फिर section? तो सीकम लेवल Most, पे होगी ऑब्स्ट्रक्शन. yes, this is इलियोसिकल वाल्व है, या वहां के लेवल पे जहाँ पे आपको लार्ज बाउल नजर नहीं आ रही, बट आपको डेफिनेटली इंटेस्टाइन के लेवल पर है, और दैट इज वाई पूरी स्मॉल गट जो है वो डायलेटेड हुई है. ठीक है ठीक, मैडम, ठीक है. तो ये आपको ऑब्स्ट्रक्शन है, और डायलेटेड स्मॉल बाउल आपको दिखा रहे इन द सेंट्रल एब्डोमेन. लार्ज बाउल इज कोलैप्स एंड देयर इज नो नीमोपेरिटोनियम. सो स्मॉल बाउल की, व्हाट यू कैन सी इन दिस एक्सरे. अब यहाँ पे कैन यू अप्रिशिएट द लार्ज बाउल. आपको लार्ज बाउल नजर आ रही है इसके अंदर. अगर पेरिफेरी में देखें तो यू कैन अप्रिशिएट द लार्ज बाउल इन दिस सिनेरियो. एक और चीज भी इस एक्सरे पे नजर आ रही है, इफ यू कैन सी दिस एरिया, ये आपकी हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी हुई हुई है. ठीक है, तो सी दिस हिप पार्ट, सी दिस हिप पार्ट, से हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी है. एंड व्हाट यू कैन अप्रिशिएट, ये आपको लार्ज बाउल. अब लार्ज बाउल में आपको क्या नजर आ रही है, लार्ज बाउल में हॉस्ट्रा मीट नहीं करते, वो इस तरह से होते हैं. ठीक है, तो मीट ये नहीं तो सारी करेंगे ये सारी लार्ज बाउल नहीं है कि. मोस्टली. यस, मोस्टली ये सारा पार्ट आपका, ये सारा पार्ट लार्ज बाउल का हम्म. है. तो मेजोरिटी इसमें आपको जो है वो क्लियर जो है वो लार्ज बाउल ऑब्स्ट्रक्शन नजर आ रही है. ठीक है,
तो दैट इज व्हाई ये आपको डायलेट, सो डायलिटेशन हमेशा ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, लार्ज बाउल इज गैस फिल्ड and distended down to the level of the distal ascending colon, sigmoid, distal descending colon and sigmoid. So this is again obstruction, and you cannot appreciate small bowel in that area. इतनी ज्यादा small bowel उस large bowel के distension की वजह से नजर नहीं आ रही, कोलैप्स हुई हुई, ठीक है, क्योंकि large bowel जो है वो fully उसने जो है वो बहुत ज्यादा distended हो गई. Hostra do not traverse the large bowel. Large bowel के अंदर hostra कभी भी traverse नहीं करते और small bowel के अंदर वो traverse करते हैं, ठीक है. So you can see this is a small intestine. These are the circular folds are there. और वो circular folds आपको appreciate हो रहे थे. These are the circular folds are there. Okay. Yes, ma'am. Next. Okay, what you can see over here in this picture, just a second. यहाँ पे देखें क्लियर उन्होंने डिफरेंशिएशन की हुई लार्ज बाउल के हॉस्ट्रा की और स्मॉल बाउल के हॉस्ट्रा की. नाउ इट इज क्लियर. Yes, ma'am. ठीक है, दे आर नॉट मीटिंग ईच अदर, और वो बिल्कुल आपको, और डायलेट होने की वजह से तो बहुत छोटे छोटे हॉस्ट्रा प्रोमिनेंट हो रहे हैं. क्लियर, अच्छे से हॉस्ट्रा प्रोमिनेंट भी नहीं हो रहे हैं आपको लार्ज बाउल के. पोजीशन से भी पता चल जाता है बाद औकात. स्मॉल बॉल तो बीच में ही इधर उधर जा रहा है ना, और लार्ज बॉल तो इतना ज्यादा वो नहीं होता, बीच में सेंटर में नहीं होता. ये आपकी पिक्चर सिग्मोइड वॉल्वुलस हम ऑलरेडी डिस्कस्ड कर चुके हैं. ठीक है, अब हमने यहाँ क्या पे देखो, अब इसने आपको बताया कि स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन का लेवल था, तो यू कैन सी द स्मॉल बाउल आपको बहुत ज्यादा डायलेटेड नजर आ रही है. ठीक है, दूसरा आपने क्या देखा, स्टेप लेडर साइन. स्टेप लेडर साइन आपने देखा कि आपको अपर लेवल पे ज्यादा प्रॉब्लम है, ठीक है, और ग्रेजुअली ऊपर के साइड पे फ्लूइड लेवल ज्यादा है, नीचे आपके कोई भी फ्लूइड लेवल्स नहीं है. ठीक है, नीचे कोई भी नहीं है. और ये देखो स्टेप लेडर साइन, या ऊपर की तरफ कॉन्सेंट्रेट हुए, ऊपर की तरफ वाले एरिया में ज्यादा है. ठीक है, एंड व्हाट इज स्ट्रिंग ऑफ द पर्ल साइन. स्ट्रिंग ऑफ द पर्ल साइन आप ऑल्सो आप ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर ही देखते हो, और वो आपको किस तरह से नजर आ रही है, यहाँ पे आप अप्रिशिएट करो स्ट्रिंग ऑफ द पर्ल्स. ये वाला जो स्पेसिफिक एरिया है, ये वाला एरिया, तो आपको लगेगा कि ऐसा लगता है ब्लैक ब्लैक आपके पर्ल्स रखे हुए स्ट्रिंग के. ठीक है, ये इस तरह ये देख रहे हो ये वाला एरिया, कि आपके ब्लैक ब्लैक से ऐसे छोटे छोटे स्ट्रिंग के पर्ल्स है. सो दिस इज आल्सो अपीयरेंस ऑफ, ये भी सारी आपकी ऑब्स्ट्रक्शन की साइंस है, स्ट्रिंग्स ऑफ द पर्ल साइन. गॉल स्टोन आपको जो है वो अपीयर होंगे, ये कैन अप्रिशिएट दिस गॉल स्टोन ओवर हियर, और उसकी वजह से आइलियस हो रहा है. पैरालिटिक आइलियस आपको दिखाएंगे. पैरालिटिक आइलियस में भी क्या होती है, ऑब्स्ट्रक्टेड पिक्चर होती है, बट एक्चुअली वो फंक्शनल होती है. आपके पास कोई मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होती, बट आपकी गट बाउल मूव नहीं कर रही, जैसे हाइपोकेलीमिया हो गया, तो पूरी गट बाउल आपको डिस्टेंडेड मिलेगी. यू कैन सी के डिस्टेंडेड लार्ज बाउल भी है, डिस्टेंडेड स्मॉल बाउल भी. So this is called ileus. So it is also called paralytic ileus. तो gallstone की वजह से problem हो रहा है, gallstone ileus. Left inguinal hernia we've already seen कि inguinal area में हमें मिलेगी गैस. ठीक है, and what other you can appreciate in this X-ray? क्लॉ साइन. तो ये क्लॉ साइन किसकी कैरेक्टरिस्टिक है, इंटरसेप्ट. इस तरह से क्लॉ बनेगा. यहाँ पे आप अप्रिशिएट करें कि जो है वो गट अंदर की तरफ यूं करके ये क्लॉ साइन आपको मिलेगा. और ये क्लॉ साइन मोर अपीयर होता है जब आप कंट्रास्ट स्टडीज करते हैं. तो हम अभी कंट्रास्ट स्टडीज में ये क्लॉ साइन को फर्दर अप्रिशिएट करेंगे, विच इज अ कैरेक्टरिस्टिक फॉर द इंटरसेप्शन. और यू कैन सी इन द इंटरसेप्शन के, इंटरसेप्शन के अंदर भी जहां पे इंटरसेप्शन हो गई है उससे पहले वाले एरिया में एयर नजर आ रही है, और क्लॉ के बाद आपको यू कैन नॉट अप्रिशिएट द एयर. तो यू कैन नॉट अप्रिशिएट द एयर आफ्टर द क्लॉ, and you can just appreciate air before that. Okay, so this is claw sign intersusception. Intersusception means one gut invaginate into the other gut. This is called intersusception. So these are the different signs in the abdominal X-ray which we can appreciate.
Now we look the other. Okay, now what you can see over here in this study, ये आपको क्या चीज दिखा रहे इधर? मैडम ये भी एयर फ्लूइड लेवल लग रहा है, नीचे तो एयर नहीं आ रही। यस, एयर फ्लूइड लेवल्स आपको अपराइट एब्डोमेन है, और आपको जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो डिस्टेंडेड सी नजर आ रही है, इतने अच्छे हॉस्ट्रा क्लियर नहीं है, और मिडिल पेल्विस के अंदर क्लियर नहीं है, तो दिस इज अगेन अ साइन ऑफ इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। इफ यू कैन सी द लार्ज बाउल साइज, so probably ये लोअर गट की है, ठीक है, तो इट इज अ लोअर जीआई ऑब्स्ट्रक्शन। लोअर जीआई ऑब्स्ट्रक्शन के डिफरेंट कॉजेज हो सकते हैं। अगर आपको न्यूनेट के अंदर दे रहे, you will think about meconium ileus, you will going to think about Hirschsprung agar child bachcha hai, so you will consider all those, okay, with lower GI obstruction. अब ये देखो आपको अनीमा साइन, वो क्या साइन दिखा रहे, क्लॉ साइन दिखा रहे हैं, स्पेशली कौन सी स्टडीज के अंदर, कंट्रास्ट स्टडीज के अंदर। तो ये एनीमा दिया हुआ है, इसको लोअर साइड से रेक्टम से ये एनीमा दिया जाता है। तो व्हाट यू कैन सी अप्रिशिएट ओवर हियर, कि आपको ये जो है जब आपने यहाँ से इसको दिया एनीमा, तो रेक्टम से होता हुआ, ये आपके सिग्मोइड कोलॉन से होता हुआ, फिर ये आपके डिसेंटिक कोलॉन से होता हुआ, या आपकी ट्रांसवर्स कोलॉन के बाद आके स्टॉप हो, ठीक है, मिड ऑफ द, और ये पूरे ट्रांसवर्स कोलॉन तक गया, फिर प्रॉक्सिमल पार्ट में आके स्टॉप हो गई, आगे कंट्रास्ट नहीं जा रही, और ये आपको करेक्टरिस्टिक इंटरसेप्शन, क्लॉ हाँ, पे मिलता है। इंटरसेप्शन का मोस्ट कॉमन साइट भी ट्रांसवर्स कॉलन में होती है ना। हाँ, इंटरसेप्शन आपकी ट्रांसवर्स कोलॉन में हुई भी है, इसमें भी डिपेंड करता है इलियोसिकल जंक्शन के ऊपर हो रही है या कहाँ पे हो रही है, ठीक है। तो ये आपकी यहाँ के ऊपर, और यहाँ पे आपको डाई नहीं मिल रही, ये इन्वेजिनेशन मिल रही है, क्लॉ साइन मिल रही है, फिलिंग डिफेक्ट आपको मिल रहा है, यहाँ फिलिंग नहीं हुई हुई, फिलिंग डिफेक्ट है, तो दिस इज मोस्ट लाइकली द इंटरसेप्शन, ओके। एंड दिस इज अगेन द, इसको हम क्या कहते हैं, अपर जीआई नहीं बोलते, इसको हम गैस्ट्रिक एनीमिया स्टडी, गैस्ट्रोग्राफिन मींस कंट्रास्ट स्टडीज है, बट आपने ये एनीमिया करवाया, गैस्ट्रोग्राफिन एनीमिया करवाया, आपने लोअर जीआईटी से जो है वो डाई को इंट्रोड्यूस किया। अच्छा, अल्ट्रासाउंड, ये अल्ट्रासाउंड पे इंटरसेप्शन की कैरेक्टरिस्टिक साइन होती है, जिसे कहते हैं ये क्या, डॉक्टर साइन। डोनट साइन, डोनट साइन। सो व्हाट यू कैन अच्छा। अप्रिशिएट इन द डोनट साइन, के डिफरेंस होता है आपके जो है वो अपर एरिया के अंदर और ये जो बीच के एरिया के अंदर डिफरेंस मिलेगा। अल्ट्रासाउंड में आपको हाइपर और हाइपो इकोइक एरियाज मिलेंगे, ठीक है। तो ये डिफरेंस क्यों मिलता है, जो सेंट्रल वाला पार्ट होता है वो आपकी जो जो गट अंदर गई हुई होती है, जो इनवेजिनेट की हुई होती है, वो अंदर गया हुआ एरिया अलग रिफ्लेक्ट करता है, और जो बाहर वाला एरिया होता है वो अलग रिफ्लेक्ट करता है। बाहर वाला एरिया एडिमा हो रहा होता है, उसका जो कलर होता है वो थोड़ा सा डार्क होता है, लाइट होता है, और जो अंदर जो एरिया गया होता है उसका एरिया डार्क होता है, so there is a color difference between it, that is why you called it as a donut sign, or that you're going to appreciate on the ultrasound. So what we see in the ultrasound, we just saw the ultrasound of the interoception, so just look at those and appreciate it. Can you appreciate the donut sign over here? दोनों साइन। वाला ज्यादा अच्छा, नीचे वाला, कैन यू अप्रिशिएट द डोनट साइन? यस मैम, So यस there is मैडम। a differentiation, आपको डोनट अपीयरेंस मिल रही है, सेंट्रली द इकोजेनिसिटी वुड बी डिफरेंट, पेरिफेरली वुड बी डिफरेंट। पेरिफेरली गट जो है वो एडिमेटस होती जा रही है, सी दिस गट इज बिकम एडिमेटस, और जो सेंट्रली जो गट है वो मिजेंट्री और सॉफ्ट टिश्यू जो इन्वेजिनेट अंदर हुआ है उसकी भी इकोजेनिसिटी आपको अपेयर हो रही है। और बीच में थोड़ा सा ब्लैक एरिया है, वो एयर का है, क्योंकि गट जब इन्वेजिनेट होगी तो थोड़ा सा ये एरिया गट का आपको ब्लैक भी नजर आ रहा है। So this is a donut appearance characteristic. We'll see all further donuts as well. So this is, you can see, this is your case. This is a 1-year-old boy presented with sudden onset of screamings and vomiting. Ultrasound of the abdomen performed. What you can see over here, it's a donut sign. Blood flow mesenteric vessel is demonstrated within the bowel loop interception. So within the bowel loop, you can appreciate this donut sign. अच्छा, अब और कहाँ आपको डोनट साइज मिल रहे हैं, यहाँ पे भी। So these are the ultrasound. You can also appreciate the donut sign over here as well. ये एरिया में भी आपको, और दूसरा डोनट साइन का नाम सूडो किडनी भी बोला,
तो किडनी का अपर स्ट्रक्चर थोड़ा डार्क होता है और लोअर स्ट्रक्चर, बीच का स्ट्रक्चर थोड़ा लाइट होता है. So it just act like a pseudo kidney as well. Okay. So donut or pseudo kidney are both the same words for that interception on the ultrasound. Can you appreciate this donut sign? Donut sign or is a target sign भी बोला है. So see, it's a quite black outward, and the difference in the echogenicity in the central area and the peripheral area. So this is complete like a donut or it is a pseudo kidney. So the donut or the target sign क्यों बन रहा है आपका? It is basically refers to the alternating echogenic mucosa and muscularis. ये आपका echogenic muscularis और hypoechoic submucosa and concentric bands which are caused by the invagination of the bowel. तो जो बाउल इनवेजिनेट कर रही है उसके जो appearance है वो hypoechoic है. Okay. So this is donut, target sign, pseudo kidney sign. So these are the three words which is used for the this interception of the ultrasound. So what you can see over here now, इन्होंने क्या चीज आपको अप्रिशिएट करिए कि रिडक्शन बताइए कि इंटरसेप्शन को जब हम रिड्यूस करते हैं तो रिड्यूस करने के लिए हम पहले तो एयर एनीमा देते हैं और अगर एयर एनीमा की इंडिकेशन ना हो तो फिर हम सर्जिकली रिड्यूस करते हैं. ठीक है. तो एयर एनीमा इन्होंने देने की कोशिश की है. तो एयर एनीमा यहाँ पे इन्होंने कैसे पता चला एयर एनीमा दिया आपको. ठीक है. यू कैन अप्रिशिएट द ब्लैक एयर इन द कोलोन. ठीक है. सो एनीमा भी दिया है, व्हाइट एरिया आपको जो है वो डाई भी दी है और उसके साथ एयर भी इंट्रोड्यूस की. ठीक है. रिजिडुअल इंटरसेप्शन उसके बाद भी थोड़ा सा रह गया है. के साथ उसके बाद भी वाला एरिया जो है वो थोड़ा सा क्लॉज साइन दे रहा है. यहाँ पे डाई नहीं आ रही है, ये रेजिडुअल एरिया. ठीक है ना. so the interception has been reduced into the cecum where there is a residual soft tissue mass is there. still जो है वो कुछ मास जो है वो टिश्यू का देयर, इसी वजह से वहां पे आपको डाई अपेयर नहीं हो रही. और डाई के साथ ये ब्लैक ब्लैक कलर नजर आ रहा है एयर का, दैट शोज के ये एयर अनीमा है. ठीक है. तो ये आपको अगेन क्लॉज साइन मिल रहा है. स्टिल इंटरसेप्शन इज देयर, इट डज नॉट रिड्यूस कंप्लीट. ठीक है. सो वी हैव डिस्कस्ड दैट पार्ट. अच्छा, अब हम देखते हैं ये वाला पार्ट. इसमें क्या चीज नजर आ रही है हमें? पैरालिटिक इलियस. तो व्हाट डू यू मीन बाय पैरालिटिक इलियस? मैंने क्या कहा था? पैरालिटिक इलियस आपकी दोनों गैस, पैरालिटिक इलियस में लार्ज बाउल में ऑब्स्ट्रक्शन, स्मॉल हाँ, बाउल. स्ट्रक्चरल नहीं होती, फंक्शनल ऑब्स्ट्रक्शन होती है. हाँ, फंक्शनल ऑब्स्ट्रक्शन. फंक्शनल होती है So what you can see in this ये. X-ray कि आपको स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन इधर नजर आ रही है आपको प्रॉपर, आपके वो ट्रैवर्स कर रहे हैं थ्रू आउट. ये सारी आपकी स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन है और यहाँ पे आपकी लार्ज बाउल भी ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है. सारा एरिया, ये सारा एरिया आपका पेरिफेरी लार्ज बाउल. यहाँ पे हॉस्ट्रा लिमिटेड से, तो जनरलाइज्ड ऑब्स्ट्रक्शन है स्मॉल बावल लार्ज बावल और कोई फंक्शनल कॉज नहीं है. और आपको गैस पूरी नीचे तक नजर आएगी. इसमें क्या होता है, और जो आपकी मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन है, मे बी यू कैन नॉट अप्रिशिएट इन द रेक्टम में एयर नजर नहीं आती, pelvis में एयर नजर नहीं आती, बट इन द पैरालिटिक इलियस यू विल गोइंग टू अप्रिशिएट द एयर थ्रू आउट द एब्डोमेन. सो दिस इज कॉल्ड कोई पैरालिटिक. लोकलाइज्ड ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होगी इसमें. हाँ, हाँ, लोकलाइज्ड ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होगी, कोई साइड नहीं मिलेगी इसमें, लोकलाइज्ड या जनरलाइज्ड होगी. मैकेनिकल, कोई ट्यूमर, कोई मैस, कोई ट्विस्टिंग, कोई वैल्वुलस, कुछ भी. इसमें ज्यादातर आपका सेप्सिस होगा, इस पे इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस होंगे, ये सारी चीजें होंगी. ठीक है. इसके कॉज के. अच्छा जी, अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज दिखा रहे हैं आपको? यहाँ पे इन्होंने दिखाया है कि डिस्टेंशन हो रही है. ठीक है. एंड यू कैन ऑल्सो अप्रिशिएट मल्टीपल एयर फ्लूइड लेवल्स एज वेल. तो मल्टीपल एयर फ्लूइड लेवल्स यहाँ पे बहुत अच्छे अप्रिशिएट नहीं हो रहे, बट you can appreciate generalized distension in both the small and the large, which we have already discussed for paralytic ileus. And lower down तक आपको देखो, आपके ये pelvic area के अंदर भी you can also appreciate the gases. So this is a plain X-ray showing paralytic ileus. Okay. Okay. Now what you can see in this case, इस केस का सिनेरियो पढ़ लें भले, और अगर सिनेरियो पहले सिनेरियो पढ़ लेते हैं और क्लियर हो जाएगा, आप फिर खुद ढूंढ लेंगे. सिनेरियो में क्या Seven लिखा day है? old 7-day-old baby born in 29 weeks gestation is noted to be pale and lethargic on the neonatal unit.
29 वीक पे डिलीवर हुआ है, 7 डे का है, पेलर भी है और लेथार्जिक भी है। हम्म। तो ठीक है, सो नाउ दे आर आस्किंग कि इन्होंने आपको 29 वीकर एक प्रीटर्म बेबी दे दिया, एकदम से वाइट पेल हो गया, लेथार्जिक हो गया। आपने अच्छा, एब्डोमिनल एक्सरे इसमें देखा? ये इंट्राम्यूरल इंट्राम्यूरल गैस तो नहीं बता रही इसमें? एग्जैक्टली इसमें किस तरह से इंट्राम्यूरल एयर नजर आती है आपको दिखाते हैं कि नॉर्मली क्या होता है, आपकी जो बाउल वॉल्स होती है ना, वो इस तरह से उसकी जो वॉल होती है ना, वो इतनी एक सिंगल लाइन की तरह पेयर होती है, ठीक है, सिंगल लाइन। जब ये लाइन आपको मोटी हो जाए ना, गट वॉल, हम बाउल की वॉल की बात कर रहे हैं, जब आपको दो लाइनें क्लियर नजर आए और उसके बीच में एयर भी नजर आए, नॉर्मली जो बॉल बाउल होती है वो एक सिंगल लाइन की तरह होती है, बट अगर वो मोटी डबल हो जाए और उसके दरमियान में एयर आ जाए, दैट इज कॉल्ड इंट्राम्यूरल एयर। तो आपको यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे अप्रिशिएट करो, यहाँ पे आप अगर अप्रिशिएट करो इस एरिया को, इसमें आपको दो छोटी छोटी व्हाइट लाइंस नजर आ रही हैं इस तरफ, और बीच में आपको एयर नजर आएगी। दिस इज कॉल्ड यस ये इंट्राम्यूरल एयर। ठीक है, तो इंट्राम्यूरल म्यूरल एयर क्या होती है आपकी, कि आपकी जो है वो वॉल्स में एयर आ जाती है, जो गट की जो वॉल बाउल है, वाल, यस यस, मैम, बाउल वाल थिकनेस हो जाएगी। वॉल है उसके अंदर ये डबल हो जाती है वॉल, और उसके दरमियान में एयर आ जाती है, दैट इज कॉल्ड इंट्राम्यूरल एयर। और आपको जनरलाइज डिस्टेंशन मिल रही है, आप ये देखिए कि सारा का सारा लार्ज बाउल आपका, ये सारा लार्ज बाउल पेरिफेरी में बिल्कुल जनरलाइज ऑब्स्ट्रक्शन, डिस्टेंशन आपको मिल रही है। और आपको इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या देखनी है, आपको देखना है कि क्या ये नेक जो है, नेक्रोटाइजिंग इंटरकोलाइटिस जो है, ये कहीं परफोरेट तो नहीं कर गया। तो आपको उसकी परफोरेशन के साइंस ढूंढने इस कंडीशन, तो परफोरेशन गैस, के हाँ, साइंस के लिए गैस व्हाट अंडर इज, डायफ्राम देखेंगे ना? और क्या देखेंगे, वेरी गुड, गैस अंडर द डायफ्राम देखेंगे। और हमने क्या क्या देखना होता है परफोरेशन को ढूंढने के लिए, परफोरेशन एक तो गैस अंडर, तो आपको यहाँ पे गैस अंडर द डायफ्राम अप्रिशिएट हो रही है? नहीं हो रही। नहीं, आपको कोई अप्रिशिएट नहीं हो रही, ठीक है। सेकंड चीज आपने क्या चीज देखनी होती है, आपने एंटीरियर टू द लिवर देखना है, कोई ब्लैक एयर नजर आ रही है कि नहीं आ रही। अगर एंटीरियर टू क्लियर इस तरह से पतली पतली सी लाइनें नजर आ रही है, दैट मीन्स ये पोर्टल ट्रैक एयर है, ठीक है, एयर इज द पोर्टल ट्रैक एरिया, दैट इज ऑल्सो द साइड ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन। फिर आपने क्या देखना होता है, आपने लिवर के अराउंड देखना होता है, सेंट्रली ऊपर देखना होता है, साइड में देखना होता है कि हल्की फुल्की सी भी एयर नजर आ रही है कि नहीं आ रही। क्योंकि अगर जैसे ही कहीं भी एयर लीक होगी तो आप पहले, सबसे पहले आपके कोनों में जाएगी, ठीक है। आपने देखना है कि कोई आपको ल्यूसेंसीज नजर आ रही है कि नहीं आ रही, बिकॉज अगर आपको साइड में नजर आ रही है या सेंट्रली नजर आ रही है तो वो फुटबॉल साइन बन जाती है, ठीक है। फिर आपने एक और चीज देखना है कि नॉर्मली आपको यहाँ पे जो जो लिवर है वो पीछे कनेक्ट हुआ हुआ होता है लिगामेंट के साथ। लिगामेंट कौन सा, फेल्सीपैरम लिगामेंट के साथ। नॉर्मली फेल्सीपैरम लिगामेंट नजर नहीं आता, लेकिन अगर आपको एक वाइट बैंड लाइक स्ट्रक्चर नजर आना शुरू हो जाए नॉर्मल एक्सरे के ऊपर, दैट मीन्स कि वो आपको लिगामेंट नजर आ रहा है, ठीक है। तो वो लिगामेंट अगर नजर आ रहा है, फेल्सीपैरम लिगामेंट कहलाता है, वो अपेयर हो रहा है, दैट इज ऑल्सो अ साइन ऑफ इंटेस्टाइनल परफोरेशन। So you have to look for the different signs and we will going those see those x-rays as well, okay? तो अब हम उनको देखते हैं, रिव्यू करते हैं। तो यहाँ पे हमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन, परफोरेशन नहीं मिल रही है, बट हमें नेक के साइज मिल रहे हैं, और स्पेशली जो है वो तो यहाँ पे हमें गट जनरलाइज है, और यहाँ पे एयर देखो, इस एरिया में एयर और ज्यादा अच्छी नजर आ रही है, इस एरिया को देखो कि दो गट वॉल आपको व्हाइट व्हाइट सी इस तरह की लाइनिंग है और उसके बीच में एयर आ रही है। So this is all the intramural gas. I think now it's clear. So now we look at यस the मैम। different signs of the obstruction. Okay. So these are the intramural gases. No gas in the portal vein. Portal vein के लिए देखने के लिए आपने क्या देखना है, लिवर के एंटीरियर साइड को देखना है। और परफोरेशन के लिए कोई परफोरेशन नहीं है, नेक हुआ हुआ, डायग्नोसिस इज द नेक। And what are the risk factors for the neck? There is always associated with prematurity, even it is associated with hypoxic conditions. Shock can also cause neck. Sepsis can also cause. UAC line can also cause neck. Even polycythemia can also cause neck. So there are different risk factors which can cause the neck.
नाउ दिस इज एन एक्सरे। अब आपको क्या चीज नजर आ रही है इसके अंदर? अगेन आपको यहाँ पे जो है वो एयर ओवर द लिवर या बहुत अच्छी अप्रिशिएट नहीं हो रही, हम आगे एक्सरेज में देखेंगे। बट आपको यहाँ पे जो बाउल वॉल है वो एडिमेटस से डबल डबल लाइनिंग नजर आ रही है। अगर आप ये वाले एरिया, स्पेशली ये वाले एरिया को देखो, आपको लगेगा डबल लाइनिंग है, ठीक है। तो आपको थिक सी ये वाले इस बाउल वॉल को देखो कितनी थिक हो गई है, ठीक है। तो ये थिक थिक सी बाउल वॉल है और सब में एयर जरूरी नहीं है, ठीक है। आपने जो है वो उसमें एयर जो है वो किस में आ रही है वो देख रही है। तो अब अगर आप यहाँ पे अप्रिशिएट करो तो ये वाले इस एरिया में आपको ये वाले इसके अंदर आपको नजर आ रही है, ये वाला एरिया देखो यहाँ पे आपको नजर आ रही है। तो ये वाला जो थिक सा एरिया हो गया, अगर इसके बीच में एयर आ जाए, दिस इज कॉल्ड, ये वाले गट पे देखो ये आपको यहाँ पे एयर नजर आ रही है, ठीक है। दिस इज ऑल इंट्राम्यूरल एयर। और थिक बाउल वूल हो चुके हैं, सारी बाउल वॉल एडिमेटस हो रही है, इतनी एडिमेटस हो रही है कि आपको एयर इतनी नजर नहीं आ रही जितनी बाउल वॉल थिक हो चुकी, इतनी बाउल वॉल थिक है, एयर ही नहीं है, पूरा एडिमेटस पार्ट है। तो फुल आपकी बाउल वॉल जो है वो इस टाइप पे एडिमेटस हुई हुई है। ओके, नाउ व्हाट यू कैन अप्रिशिएट फर्दर। नाउ दीज आर द डिफरेंट साइंस। एक साइन वो जो मैंने आपको कहा था, ये परफोरेशन के साइंस है कि अब आप देखें लिवर के साइड में सारी एयर कॉन्सेंट्रेट करना शुरू हो गई है। सी दिस इज द होल एयर, यू कैन सी ऑल। एंड इवन अगर आप लिवर के ऊपर भी देखें, ये सारे एरियाज आपने देखने, स्पेशली फॉर परफोरेशन, स्पेशली फॉर परफोरेशन यू कैन सी ये एयर का ऊपर, ये लिवर का ऊपर वाला एरिया। कैन यू अप्रिशिएट दिस एयर, कैन यू अप्रिशिएट दिस? ये ऊपर भी आपको अप्रिशिएट हो रहा है। और ये डायफ्राम देखो सेपरेट हो गया, ये डायफ्राम का एरिया आ रहा है और उसके साइड में जो है ये लिवर पूरा आपको एयर से फिल। तो ये पूरा डोम साइन बन गया। और एक साइन इन्होंने आपको रेगुलर साइंस बताई है। तो रेगुलर साइन बेसिकली वही होती है कि आपकी जो डबल बाउल वॉल है ये आपको बहुत प्रोमिनेंट नजर आ रही है, ठीक है। दो दो वॉल्स जो है वो आपको नजर आ रही है, क्लियरली नजर आ रही है, दैट इज कॉल्ड रेगुलर साइन। तो अगर यहाँ पे भी आप देखो बहुत क्लियर डबल डबल वॉल नजर आ रही, नॉर्मली आपको सिंगल वॉल नजर आती है, लेकिन जब आपको दो अलग से लाइनें नजर आने शुरू हो जाए, दिस इज कॉल्ड रेगुलर साइन, ओके। तो रेगुलर साइन है। और अगर आप बाहर उस वॉल के बाहर देखो तो एयर नजर आएगी। जहां पे भी आपको ये डबल वॉल नजर आएगी उसके आसपास देखोगे तो ये देखो उसके बाहर देखोगे तो फ्री एयर नजर आ रही है, दिस इज कॉल्ड रेगुलर। जहां पे भी वॉल डबल नजर आए उसके बाहर एयर नजर आए, दिस इज कॉल्ड रेगुलर। दिस इज अगेन अ साइन ऑफ नीमोपेरिटोनियम। इधर भी आप नोटिस करो ये डबल वॉल है उसके साथ ये ब्लैक एरिया, जहां भी डबल वॉल है उसके साथ देखो ये क्लियर ब्लैक एरिया नजर आ रहा है। तो जहां यहाँ पे ये आपको बता रहा है कि आपको जो है गैस लीक होना स्टार्ट हो गई है, नीमोपेरिटोनियम स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड रेगुलर साइन। तो सिर्फ डबल बाउल वॉल ना, उसके आगे एयर भी नजर आए, दैट इज कॉल्ड रेगुलर साइन। तो दे डोंट आस्क अबाउट दैट मच अबाउट द रेगुलर, बट आपको ये डोम साइन देखनी है, पेरिफ्री में एयर देखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अंडर द डायफ्राम पेरिफ्री लीवर के ऊपर देखनी है, लिवर क्लियर है कि नहीं, थोड़ा बहुत भी ब्लैक ब्लैक शेडो नजर आ रहा है। और यहाँ पे देखो आपको फेल्सीपैरम लिगामेंट अपेयर हो रहा है, कैन यू अप्रिशिएट दिस लिगामेंट? कैन यू अप्रिशिएट दिस लिगामेंट? दिस इज द फेल्सीपैरम लिगामेंट जिसने अटैच किया हुआ है लिवर को आपकी पोस्टीरियरली। So if you can see this कौन ligament, that is again a sign of intestinal perforation. क्या आपकी कौन सा perforation? लिगामेंट है मैम? हाँ, ये जो डोम साइन के नीचे, डोम साइन के नीचे इस तरह जा रहा है। ये वाला ये जो बनाया है ना, ये वाला, ये देखिए ये वाले लाइन, दिस इज। ये अब आप मैं मैडम है। बताती हूँ। अब आप देखो लिगामेंट अपेयर हो रहा है, नॉर्मली आपको इस तरह का लिगामेंट अपेयर नहीं होगा, दिस इज कॉल्ड फेल्सीपैरम लिगामेंट, ओके। तो यू विल लुक ठीक है। ऑल फॉर दिस, ये आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप ये सारे साइंस के लिए, परफोरेशन के सारे साइंस के लिए जो है वो देखो, एक साइन नहीं है। जब आप बच्चे को लेटाए हुए होते हो, ठीक है, और उसको जो है लेटरल पोजीशन में करते हो, तो गैस इस तरह एब्डोमिनल वॉल के मसल्स के नीचे चली जाती है अगर आपकी परफोरेशन। तो ये आपने लेटरली बच्चे को लेटा के जब एक्सरे किया, तो दिस इज योर एब्डोमिनल वॉल, और एब्डोमिनल वॉल के नीचे एयर आ। तो व्हाइट एरो क्या शो कर रहा है? व्हाइट एरो शो कर रहा है फ्री एयर बिटवीन द एब्डोमिनल वॉल एंड दिस ब्लैक इज द लिव। सो ब्लैक एरो इज शोइंग द फ्री फ्लूइड। फ्लूइड भी नजर आ रहा है क्योंकि फ्लूइड लेवल आपको नजर आ रहा है। तो अगर आप यहाँ पे देखो आपको एक फ्लूइड लेवल भी नजर आ रहा है, यू कैन अप्रिशिएट दिस फ्लूइड लेवल एज वेल।
So this fluid level is show कि fluid भी है और air भी है. So this is pneumoperitoneum. Okay. कि पेरिटोनियम के अंदर नीमो भी हो चुका है, परफोरेट भी कर गई है और फ्लूइड भी निकलता है. और ये आपने लेटरल सिक बच्चों को आप खड़े होके बाज दफा नहीं कराते, आप उसको लेटरली भी मूव करा लें तो आपको अगर एयर होगी तो वो इस तरह साइड में आपको अब्डोमिनल वॉल के नीचे अप्रिशिएट हो जाएगी. ठीक है. अच्छा, ये अब उन्होंने फैल्सीपैरम लिगामेंट और क्लियर दिखाया हुआ है आपको. अब अच्छे से अप्रिशिएट हो गया कि फैल्सीपैरम लिगामेंट इस तरह से आपको नजर आएगा. और ये भी आपको बताएगा. और ये कैसे पता चलेगा फैल्सीपैरम लिगामेंट जब अपेयर होगा, जब उसके आसपास ब्लैक एयर आ जाएगी तो वो व्हाइट वाला एरिया जो है वो बहुत ज्यादा क्लियर नजर आना शुरू हो जाएगा. ठीक है. तो दिस इज द फैल्सीपैरम लिगामेंट. लीवर के ऊपर नजर आ रहा है शेडो, तो आप पोर्टल वेन एयर आ गई है. ठीक है. Okay, next we see all these different signs of the perforation. Okay, अब can you appreciate the air anteriorly in this X-ray? बहुत बड़ी बड़ी नजर नहीं आएगी आपको, अच्छे से आंखें खोल के देखनी है. Can you appreciate something over here? Can you appreciate? और से देखें. Can you appreciate some black? सिर्फ लाइनिंग्स नजर आएगी. पोर्टल वेन कोई बहुत बड़ी तो नहीं है ना, तो स्मॉल आपको ब्लैक ब्लैक से शेडो नजर आएगा, एयर का शेडो इन द वेन. दिस इज पोर्टल वेन. Can you appreciate the ligament over here? This is portal ligament. Okay. And can you appreciate the free air? ये आपकी ये रेगुलर साइड बन रही है. ठीक है. डबल बाउल वॉल और ये आपकी साइड में एयर भी आना शुरू हो. तो ये वाली एयर आपको यहाँ पे साइड पे नजर आ रही है. ये एरो का ज्यादा क्लियर नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं कि क्लियर नहीं होगा सम टाइम. क्या चीज क्लियर नहीं है? ये ब्लैक एरो जहाँ पे लगा हुआ है वहां पे तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा, वाइट वाइट है सब बहुत कुछ. गौर से देखिए, मैं थोड़ा सा जूम कर, बहुत गौर से देखना पड़ेगा. जस्ट थोड़ा सा जूम करते हैं, आपको नजर आएगा पोर्टल वेन का ना हल्का हल्का शेडो ब्लैक ब्लैक से नजर आएगा. यस मैडम, ये तो बहुत. नहीं नहीं, ये आपको देखो आइडिया होना चाहिए. आंखें जब देखेंगी जब पता हो दिमाग में कि कुछ देखना है. जब पता ही कुछ ना यस हो तो क्या मैडम, देखेंगे, तब तो कुछ नहीं दिखेगा. आप सिनेरियो भी पढ़ेंगे हिस्ट्री. अब देखो थोड़ा सा आपको बहुत मीन्स बहुत नजर बारीक आई, सा नजर आ रहा है. हाँ. बारीक सी, क्योंकि पोर्टल वेन छोटी सी वेन, उस वेन के अंदर एयर आई हुई. इस तरह की दो ब्लैक सी लाइन है, आपको वी शेप जो है वो ब्लैक लाइन. अब और पिक्चर्स देखोगे आपको और चीजें क्लियर हो, बट आपको देखना क्या है वो तो पता चले. ठीक है. यस तो मैडम. जब आप देखने की नियत से देखोगे तो आपको आप दिमाग में कुछ होगा तो फिर आंखों को भी नजर आएगा. वो यही कहते हैं ना कि ब्रेन आईज कैन ओनली सी व्हेन समथिंग इज इन योर माइंड. दैट्स द थिंग. ओके. यस मैडम. तो ये मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे ये कॉन्सेंट्रेट करना है आपने कि कुछ अपेयर हो रहा है कि नहीं हो रहा है. तो ये चीजें थी आपने. ठीक है. अच्छा जी, अब नेक्स्ट केस 17. अब ये क्या दिखा रहा है आपको? ये बड़ा सा व्हाइट ब्लैक शेडो फुटबॉल अपीयरेंस आ गई है. ठीक है. अब ये फुटबॉल अपीयरेंस डेफिनेटली सिर्फ सेंट्रल ना ही हो, बाज दफा पेरिफेरी में भी एयर आती है, तब भी हम इसे फुटबॉल साइन कहते हैं. तो यहाँ पे आपको कुछ फ्लूइड लेवल्स नजर आ रहे हैं और ये आपको बीच में सेंट्रल ल्यूसेंसी नजर आ रही है. दिस इज कॉल्ड फुटबॉल साइन. अगेन दिस इज अ साइन ऑफ फॉर इंटेस्टाइनल परफोरेशन. ऑब्स्ट्रक्शन गैस है कि परफोरेशन है? परफोरेट हुई, फट गई है गैस, तभी गैस बाहर आ रही. ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, दिस इज परफोरेशन. अभी भी जो हमने फैल्सीपैरम लिगामेंट देखा, पोर्टल वेन देखी, ये सब परफोरेशन के साइंस. वो तो डोम ठीक है, लेकिन आसपास इसके वो क्या कहते हैं, प्लूरल पेरिटोनियल केविटी के सराउंडिंग में भी एयर नहीं है, और बाकी भी इसमें बाकी चीजें तो नहीं है, गट लूप्स भी नजर नहीं आ रही. नजर नहीं आ रही, एडिमेटस हुई भी है, वाइट आउट हो गई, इतनी नजर नहीं आ रही, सिर्फ गैस बाहर नजर आ रही है. तो तो इन्फ्लेमेशन ऑब्स्ट्रक्शन में होना भी शुरू हो होगी. जाती है. ऑब्स्ट्रक्शन में भी तो इस तरह हो सकता है कि जस्ट ऑब्स्ट्रक्शन में आपको एयर नजर नहीं आती. ऑब्स्ट्रक्शन में आपको इस तरह से जो ना वो आपको बाउल एयर नजर आ फ्लूइड रहे लेवल, नहीं, एयर हैं. फ्लूइड लेवल तो नजर आएंगे ना उसमें. यस यस, एयर फ्लूइड लेवल्स डेफिनेटली नजर आएंगे. यू आर राइट, बट अब आपको फ्री गैस नजर एयर नहीं आएगी. ये एयर आप कह रहे हैं कि इंटेस्टाइन से बाहर निकली हुई है? हाँ, फ्री गैस है. देखो किसी भी उसके अंदर अच्छा. नहीं है, ये फ्री गैस है, बॉल की तरह आपके ऊपर आई हुई है. और यही बॉल आपकी साइड में भी हो सकती है. फुटबॉल साइड इसे कहते हैं, साइड. लेकिन ये फ्री होगी, बाउल के अंदर नहीं होगी. अब देखो 5 डे है, बॉर्न 34 वीक्स पे, वेंटिलेटेड हो रहा है, फर्स्ट अफेक्टेड एज एब्डोमिनल डिस्टेंशन, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, कार्डियोवास्कुलर कोलैप्स. तो ये परफोरेट कर गया इसके एब्डोमेन. So what is the diagnosis? This is a large lucency football sign. GIT perforation secondary to neck most likely.
नाउ दिस इज द एक्सरे अगेन। अब ये क्या आपको बता रहे हैं अगेन, अब यहाँ पे फुटबॉल साइन आपको कहाँ नजर आ रही है, यहाँ पे ल्यूसेंसी आपको देखो कहाँ पे नजर आ रही है, एक्सटेंडिंग इन द होल एब्डोमेन। अब ये सिर्फ सेंट्रली नहीं है, यू कैन सी ओवर ये सारी जगह पर ओवरऑल। ये देखो ये एरिया, यहाँ पे गट नहीं है, ये वाले एरिया को देखो, ये वाले एरिया पूरे होल एब्डोमेन के अंदर ये एक्सटेंड कर गई है। दिस इज द साइन ऑफ फुटबॉल साइन। फुटबॉल साइन सेंट्रली भी हो सकती है, फुटबॉल साइन आपके पूरे एब्डोमेन में फैल भी सकती है, तो आपको पेरिफेरल रीजन के अंदर भी फुटबॉल साइन अपेयर हो रही है, यहाँ पे देखो और यहाँ पे देखो, ठीक है। यस मैडम, ये परफोरेशन है। हाँ, ये ल्यूसेंसीज है, ठीक है। तो इस तरह से आप ने जो है वो फुटबॉल साइन को जो है वो सेंट्रली जरूरी नहीं है, सिर्फ एक बॉल लाइक अपीयरेंस। So you can see for this also for perforation. Now this is again the second case. अब again ये अल्ट्रासाउंड है। अल्ट्रासाउंड में आप क्या चीज देख रहे हो, यहाँ पे अल्ट्रासाउंड सिनेरियो अगर आप देखो उन्होंने क्या दिया हुआ है, दिस इज द 6 week old boy was admitted with vomiting after feeds and weight loss. तो क्या हुआ कि 6 week पे ये प्रेजेंट हुआ है। पहले तो प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है। 6 week पे बच्चा प्रेजेंट हुआ है वॉमिटिंग के साथ आफ्टर फीड्स। ऑन एग्जामिनेशन ही इज हंग्री एंड वेस्टेड। तो पाइलोरिक स्टेनोसिस यू आर, पायलोरिक स्टेनोसिस। so you what examination you will going to perform and what is the most likely diagnosis? ये कौन सी एग्जाम? अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड में थिकनेस देखते हैं ना, पायलोरिक जो दो उसकी चीजें थिकनेस देखते हैं, होती है। ठीक। एक लेंथ देखते हैं और एक आप जो है वो क्या देखते हैं, थिकनेस ऑफ द मसल देखते हैं। तो अगर आप ये वाली पिक्चर में देखो तो आपने ये थिकनेस ऑफ द मसल देखनी है, पाइलोरिक मसल की ये थिकनेस देखनी है, और ये जो पाइलोरिक कैनाल है उसकी लेंथ को देखना है, ठीक है। तो ये दो चीजें आप देखते हो, कैनाल की लेंथ को देखते हो, ये बीच में आपकी पाइलोरिक कैनाल आ रही है, और ये जो मोटे मोटे जो ये है ये आपके मसल्स आ रहे हैं। तो पाइलोरिक मसल की आपने क्या देखनी है, विड्थ देखनी है कि कितने थिक है पाइलोरिक मसल और कितनी इलोंगेटेड उसकी पाइलोरिक कैनाल की लेंथ है, ठीक है। तो अल्ट्रासाउंड शोइंग पाइलोरिक मसल्स मोर देन 3.4, 3.4 से ज्यादा बढ़े हुए हैं। और अगर आप उसकी लेंथ को देखो वो भी जो है वो पाइलोरिक लेंथ कैनाल जो है वो मोर देन 17 मिलीमीटर्स। So this is most likely you are dealing with congenital hypertrophic pyloric stenosis. तो ये अल्ट्रासाउंड में आपको इस तरह की अपीयरेंस मिलेगी विद द सिनेरियो। और अगर आप उसको पाइलोरिक स्टेनोसिस को यहाँ पे ये और आपको अच्छी क्लियर पिक्चर्स दिखा रहे हैं, ये कहाँ पे पाइलोरिस है, तो यहाँ पे अगर आप देखो ये जो है ये पाइलोरिक मसल है और ये बीच में बहुत पतली सी ब्लैक कलर की आपकी कैनाल है। तो ये कैन अप्रिशिएट दैट। यहाँ पे भी आपको क्या नजर आ रहा है, पाइलोरस, ये आपको पाइलोरस मसल है, ये दोनों आपका पाइलोरस मसल है, ठीक है। और बीच में ये ब्लैक कलर की आपकी पाइलोरिक कैनाल। अच्छा, इसकी बहुत अच्छी चीज जो है ना वो आपको अप्रिशिएट होती है गैस अपर जीआई स्टडीज में। अपर जीआई स्टडीज में आप क्या देख रहे होते हैं, उसमें बहुत अच्छी क्या चीज अपेयर होती है उसको आप देखते हैं। तो ये तो अल्ट्रासाउंड में आपने फीचर्स देख लिया पाइलोरस को और मसल्स को। सिर्फ अगर ये सिर्फ ये वो पड़ा रहे उसमें तो मुश्किल है फिर पाइलोरस ढूंढना, और उसमें थिकनेस अगर सिनारियो होगा या कुछ थोड़ा बहुत बताया होगा है, फिर तो आपको पिक हो जाएगा। डेफिनेटली मिलेगा, ऐसा नहीं है खाली खाली अल्ट्रासाउंड नहीं दे देंगे आपको। रेडियोलॉजिस्ट थोड़ी है जो आप सारी चीजों को पिक कर लेंगे, आपको डेफिनेटली सिनेरियो मिलेगा, ठीक है। अब आपको कुछ बहुत क्लियर चीजें मिलेंगी। अब जैसे ये है देखो नॉर्मल, ये आपने बेरियम मील करवाया है, ठीक है। अब नॉर्मल स्टमक की अपीयरेंस देखो किस तरह की, और पाइलोरिक स्टेनोसिस में नॉर्मल अपीयर, ये देखो ये गैस्ट्रिक का अपर शेडो है, ये फंडस है, ये स्टमक का फंडस है, ये पाइलोरिक एंड है, इस तरह का पाइलोरिक एंड है, और फिर आपके ये ड्यूडेनम स्टार्ट हो। तो ये तीन आपको इस तरह की नजर आए। लेकिन जब आप उसको उसमें देखोगे अपना पाइलोरिक स्टेनोसिस में, तो अब आप देखो ये बहुत डिस्टेंडेड सा हो जाएगा आपका एंट्रम, या आपका जो गैस्ट्रिक एंट्रम है, जो लोअर पार्ट ऑफ योर स्टमक है, इट विल बिकम डिस्टेंडेड, और आपका पाइलोरिक कैनाल देखो बिल्कुल पतली सी स्ट्रिंग की तरह हो जाएगी, और ये आपको जो है बिल्कुल नैरो, और ये ड्यूडिनल का बल्ब नजर आ रहा है। तो ये लास्ट बिल्कुल। पार्ट ऑफ द ड्यूडिनम तो नजर आएगा बल्ब की तरह, लेकिन ये जो बीच का पार्ट है पाइलोरस वो बिल्कुल स्ट्रिंग की तरह पेयर, बिल्कुल जो पाइलोरिक कैनाल है उसकी लेंथ जो है वो बिल्कुल आप देखिए पतली सी लेंथ नजर आएगी और स्ट्रिंग की तरह नजर आएगी। इज दैट क्लियर पिक्चर? यस मैम। तो ये आपको बेरियम स्वॉलो स्टडीज के अंदर इस तरह से जो है वो पाइलोरिक
स्टेनोसिस नजर आती है। ठीक है, अल्ट्रासाउंड पे भी आपने देख लिया और बेरियम स्टडीज के ऊपर भी देख लिया, और इसको स्ट्रिंग साइन कहते हैं। ठीक है, तो व्हाट यू आल्सो कैन सी ओवर हियर, अब अगेन आप अगर यहाँ पे देखो तो ये आपका पूरा स्टमक है, ये फंडस है, ये पाइलोरिक की पतली सी लेंथ है, ये ड्यूडिनल बल्ब है, ये स्ट्रिंग है, और ये थोड़ी सी आउट पाउचिंग हुई है। तो आउट पाउचिंग क्यों हुई हुई है? क्रिएटेड ऑन द लेसर कर्वेचर पे हुई हुई है बाय डिस्टॉर्टेड मसल्स इन द हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस। ओके, तो ये तो ये हाइपरट्रोफिक थोड़ी सी आपको आउट पाउचिंग दिखाएगी। इसको टिट साइन कहेंगे? क्या कहेंगे? टिट साइन, ये क्या लिखा हुआ है, टिट साइन? कौन सी साइन बोले? टिट साइन, हाँ ये टिट साइन लिखा हुआ है, टिट साइन। ठीक है, लेसर तो कर्वेचर पे आउट पाउचिंग होगी, लेसर उसको टिट साइन कर्वेचर कहेंगे। आउट पाउचिंग है। ठीक है, तो ये आउट पाउचिंग हो गई, तो दैट इज व्हाई इट कॉल प्रोड्यूसेस अ टिट साइन। नाउ नेक्स्ट, दिस इज पाइलोरिक स्टेनोसिस। तो टिट साइन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको देखना आना चाहिए कि एक्चुअली क्या देखना है। अब अगर आपने इसी में सिर्फ और सिर्फ रेडियोलॉजी करवा ली, एब्डोमिनल एक्सरे करा लिया पाइलोरिक स्टेनोसिस में, तो आपको क्या नजर आएगा? सिर्फ और सिर्फ एक डिस्टेंडेड स्टमक नजर आएगा, एंड यू विल नॉट गोइंग टू अप्रिशिएट एनी गैस इन द लोअर एब्डोमेन। तो आपको जो स्टमक का पार्ट है वो एक्सटेंसिवली, ह्यूजली, मार्कली डिस्टेंडेड नजर आएगा, लाइक दिस। ओके, गैस बबल, स्टमक का गैस बबल बहुत ज्यादा डिस्टेंडेड। Now, what is this case? What you can appreciate in this case? ये 30 केस नंबर 30 इस क्या नजर आ रहा है? डिस्टेंडेड बाउल लूप्स है ना? बिल्कुल डिस्टेंडेड आपको ओवरऑल बाउल लूप्स नजर आ रहे हैं इस टाइम पे, और नीचे जो तक है भी वो नीचे तक भी एयर आ रही है, तो ये पैरालिटिक इलियस भी हो सकता है, फंक्शनल नीचे ऑब्स्ट्रक्शन। इतनी अच्छी एयर नहीं आ रही, यहाँ पे आके रुक गई है यार, देखो यहाँ तक आपको नजर आ रही है यार। के बाद ये वाले एरिया में एज कोई गैस नहीं है, बहुत अच्छी ब्लैक रेक्टम आपका खाली पड़ा हुआ, तो आपकी एयर फिर जो है वो यहाँ पे नहीं है। सिग्माइड के लेवल पे ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकती है फिर। लोअर जीआई ऑब्स्ट्रक्शन है, अगर लोअर जीआई ऑब्स्ट्रक्शन है तो क्या क्या डिफरेंशियल बताए थे आपको? लोअर जीआई में तो सिग्माइड वाल्वुलस भी हो सकता है। वॉल्वुलस की एक अपनी कैरेक्टरिस्टिक साइन होती है ना, जो हमने डिस्कस की थी। अब लोअर जीआई ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर हर्षप्रंग बोले, ठीक है, जहाँ पे रेक्ट बिल्कुल। सिग्मोइड के अंदर और रेक्टम के अंदर कुछ भी नहीं आ रहा, मिकोनियम प्लग्स फंसे हुए हैं, ठीक है, वो आपका हो सकता है। तो ये वाली या चीजें कॉन्स्टिपेशन भी हो सकती है। हाँ, कॉन्स्टिपेशन से कॉन्स्टिपेशन भी हो सकती है। कॉन्स्टिपेशन में फीकल लोडिंग अलग से नजर आती है, वो ब्लैक नहीं होती, वो थोड़ी वाइटिश सी अपीयरेंस होती है फीकल लोडिंग एक्सरे के ऊपर। ठीक है, यस मैडम। वाल्वुलस में तो वो आपकी बात सही है, अलग सी उसमें जस्ट सिग्माइड जो पार्ट वाल्वुलस होगा वही डिस्टेंडेड होगा, और स्मॉल बिल्कुल गट तो बिल्कुल उसमें ठीक नजर आएगा, ऐसे ही है ना? बिल्कुल। वॉल्वुलस में आपको लार्ज सा वो सिग्मॉइड और वो कोलॉन वाला पार्ट। जब आपको यस। इतनी सारी गैस नजर आ रही है एब्डोमेन में, आप थिंक करें कि लोअर जीआई ऑब्स्ट्रक्शन आप मैनेज करें, ब्रॉड टर्म से लेके चलें कि पूरा यस। एब्डोमेन में गैस है, रेक्टम में नहीं है, पेल्विस में नहीं है, तो कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, ये पीडियालिटिक इलियस नहीं है। So this is a 3-day old boy was received from the postnatal ward for the failure to pass meconium. अब आपको हिस्ट्री में मिल गई कि failure to pass meconium है। On examination, the abdomen was distended with palpable bowel loops and the anus appear. तो अगर आपका तो anus सबसे पहले हर्षस्प्रिंग, इस हिस्ट्री अगर दी होगी तो हर्षस्प्रिंग रूल आउट करेंगे सबसे पहले, ऐसे ही है? meconium alias और imperforate anus भी आपको इसी तरह प्रेजेंट करेगा। तो ये तीसरा डिफरेंशियल आपका anus भी आपने देखना है। बाज दफा एनएस एग्जामिनेशन मिस हो जाती है, ठीक है, सो दैट इज वेरी कॉमन। तो आपने एनएस एग्जामिनेशन भी इसमें उन्होंने खुद बता दी कि एनएस वाज पेटेंट ओवर देयर। ठीक है, यस मैडम। व्हाट इज मोस्ट लाइकली व्हाट एग्जामिनेशन, व्हाट डज प्लेन एक्सरे शो? सो प्लेन एक्सरे आपको क्लियर बता रहा है कि ये डिस्टेंशन हुई हुई है। अब आप फर्दर कौन सी एग्जामिनेशन करना चाहोगे? अगर आपके दिमाग में हर्षप्रंग है या मेकोनियम आइलिस है, तो आपकी सेकंड चॉइस क्या होनी चाहिए चेक करने के लिए तो कराओगे? वो करते हैं ना, डीआरई करेंगे, डीआरई करते हैं या इस तरह का क्या कुछ करते करेंगे? हैं ना? डीआर नहीं, एग्जामिनेशन पूछिए आपसे, अ, कोई इन्वेस्टिगेशन मींस वो कंफर्म कर। कहते हैं कि गश ऑफ फ्लूइड और गैसेस फिर निकलते हैं ना, हर्षस्प्रिंग को नहीं रूल आउट नहीं करने नहीं के नहीं लिए। नहीं, देखो डीआरई ना आपने यूके के पेपर में बोलना ही नहीं है, आप नहीं कर सकते डीआरई। ठीक है, वो बिल्कुल नहीं पसंद करते हैं।
DRE जो है वो ट्रेन पीपल करेंगे, आप DRE नहीं करेंगे। तो DRE का ऑप्शन आप लोगों ने ऑप्ट करना ही नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या चीज होगी, अगर आपने कोई इन्वेस्टिगेशन की मैं बात कर रहा हूँ, नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन क्या करेंगे, ये आपके पास एक्स्ट्रा। नाउ व्हाट योर नेक्स्ट नहीं, प्लान? आपने एग्जामिनेशन का पूछा, इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो फिर तो वो क्या कहते हैं, एग्जामिनेशन मानोमेट्री से का, मुराद इन्वेस्टिगेशन मैं पूछ रही हूँ, यस। मैनोमेट्री करेंगे। नहीं नहीं, इतनी जल्दी बात थोड़ी जाते हैं, एनल मैनोमेट्रीज कहाँ करते हैं हम, प्रैक्टिकली बात बताए ना। GIT ऑब्स्ट्रक्शन सस्पेक्ट कर रहे हैं आपने, अब कंट्रास्ट डाले ना अंदर तो आपको सारा पता तो चले। सो आप यस बेरियम इल्मा करवाएं, कंट्रास्ट स्टडीज देखी जाती। कंट्रास्ट में पता चलता है कि आपकी जो है वो हशप्रंग का सेगमेंट जो है वो डेफिनेटली जो प्रॉक्सिमल होगा वो डायलेटेड होगा, जो डिस्टेंट होगा वो नैरो डाउन होगा। मिकोनियम इलियस होगा तो आपको मिकोनियम की प्लग की भी एक कैरेक्टरिस्टिक अपीयरेंस दिखेगी। तो यू गो विद कंट्रास्ट, ओके। और यस मैम। डिफरेंशिएट पूछे इन्होंने आपसे, देखो एक डायग्नोसिस नहीं पूछा, क्योंकि इस GI ऑब्स्ट्रक्शन, लोअर GI ऑब्स्ट्रक्शन के मल्टीपल कॉज, दैट इज व्हाई दे पुट द डिफरेंशियस। तो डिफरेंशियस हमने मिकोनियम इलियक और हमने हर्षप्रंग का, ठीक है। सो इट्स अ मल्टी डायलेटेड डिस्टेंडेड लूप्स, लोअर GI ऑब्स्ट्रक्शन, DDs आर हर्षप्रंग एंड द मिकोनियम इलियस। तो ये अगेन आपको नेक्स्ट एक्सरे दिखाएगी। अब देखें इधर भी लोअर बाउल में आपको एयर नजर नहीं आ रही, और लार्ज बाउल साइड के अंदर पूरी डिस्टेंडेड है, बीच में सेंट्रली आपकी स्मॉल बाउल भी है। So, but you cannot appreciate any air in the rectum. This is a supine abdominal film demonstrate numerous dilated loops है जो कि खत्म हो रहे कहाँ पे, डिसेंडिंग लूप पे आके फिनिश हो रहे। यहाँ तक एयर नजर आ रही है, डिसेंडिंग लूप, आगे कोई एयर नजर नहीं आ रही, ठीक है। लोअर ऑब्स्ट्रक्शन है, हाँ। वेरी गुड। तो ये आपको अपर GI ऑब्स्ट्रक्शन को भी देखना आना चाहिए, लोअर GI ऑब्स्ट्रक्शन को भी आप अपने एक्सरेज के ऊपर पिक करें, ठीक है। तो ये आपने लोअर GI ऑब्स्ट्रक्शन का एक और देख लिया। अच्छा जी, अब वो क्या चीज आपको दिखाना चाह रहे हैं, अब ये देखें, ये इन्होंने करा लिया है एनीमिया, जो मैं आपको कह रही थी ना, कंट्रास्ट एनीमिया करवाया, ठीक है। अब कंट्रास्ट एनीमिया में आपको क्या नजर आया, एनीमिया के जरिए आपने डाई इंट्रोड्यूस की है, ठीक है, रेक्टम के अंदर डायरेक्टली। तो अब क्या लिखा है, इन कंट्रास्ट एनीमिया में डिलिनेट द ट्रांजिशन जोन बिटवीन द नॉर्मल। तो नॉर्मल पार्ट जो होगा ना वो आपका क्या होगा, डायलेटेड होगा। तो यू कैन अप्रिशिएट कि ये आपका डायलेटेड कोलॉन है, ठीक है। और इसके बाद क्या होगा, नैरो सेगमेंट होगा, ये पूरा आपका नैरो सेगमेंट है, विच इज ए गैंग्लियोनिक बाउल है, यूजुअली इन द रेक्टोसिग्मोइड रीजन। तो ये कौन से एरिया पे ज्यादा कॉमन है हर्षप्रंग, आपकी रेक्टोसिग्मोइड रीजन के अंदर, जो सिग्मोइडल पार्ट है वो मोस्टली ज्यादा इन्वॉल्व है, ठीक है। दिस इज योर रेक्टोस्टिग्मोइड एरिया, ये वाला आपका नैरो। So you will get the distension along with the narrowing. This is for हर्षप्रंग, ये आपने हर्षप्रंग में कंट्रास्ट पे डाल के ये चीज देखनी है, ठीक है। अच्छा, इसमें रेक्टल रेक्टम का रेक्टल एनीमा दिया हुआ है। हाँ एनीमिया दिए भाई, एनीमिया से चेक करेंगे जब भी लोअर GI को देखना है। सो यू विल पुट द डाई थ्रू योर रेक्टम, एनीमिया के थ्रू। जब आपने अपर देखना है तो फिर आप अपर से दो, तो इसीलिए देखो नहीं, अपर से अगर दे देते तो फिर भी तो पता चल ना जाता। से अगर आप दे देते ना तो उसमें फिर, क्योंकि यहाँ पे इतनी कॉन्स्ट्रिक्शन है, बाज दफा डाई यहाँ पे पहुंचती भी नहीं, ठीक है, अच्छा। कंस्ट्रिक्शन होती है यहाँ पे। पूरा गैंग्लियन का सेगमेंट बिल्कुल कोलैप्स होता है, कॉन्ट्रैक्टेड होता है। तो जब आपने नीचे से इंट्रोड्यूस की, एक प्रेशर के साथ भी इंट्रोड्यूस करी, जब आप प्रेशर मारोगे तो चीज कॉन्ट्रैक्टेड भी होगी तो ओपन हो जाएगी ना, एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से। तो ये वाला एरिया जो है वो आपको फिर थोड़ा बहुत, अब अगर आप नोटिस करो एक और चीज, कि आपका रेक्टम और सिग्मोइड कोलॉन दोनों का जो डायमीटर है वो कोलॉन से छोटा होगा। तो ये वाला एरिया वुड बी नैरो डाउन कंपेयर टू योर डिसेंडिंग कोलॉन, ओके। ये सी फर्दर पिक्चर्स एज वेल। नाउ व्हाट यू कैन सी इन दिस पिक्चर, आपको और क्या नजर आ रहा है, ये देखो। अब आपने ये बेरियम एनीमिया करवाया है, देखो एनीमा है। अब आपको यहाँ पे देखो, ये सिग्मोइड का रीजन है, ये सिग्मोइड का रीजन है, और यहाँ पे सिग्मोइड के रीजन के अंदर और इस रीजन के अंदर आपको डिफरेंस होगा। यहाँ पे ये डायलिटेशन की वजह से हॉस्ट्रा नहीं मिल रहे, लेकिन यहाँ पे आपको सी टूथ लाइक अपीयरेंस मिलेगी। और इसका जो डायामीटर है, इसके डायामीटर और इसके डायामीटर में डिफरेंस है, ये ज्यादा एक्सटेंडेड है, ये कम एक्सटेंड। तो देयर विल बी द डिफरेंस, आपको डिफरेंस मिलेगा, एक पार्ट डायलेटेड ज्यादा, एक पार्ट कम डायलेटेड।
ठीक है. So what you can see over here, this is the barium anemia that show reduced caliber of the rectum and the sigmoid. The rectum is smaller than the descending colon with sawtooth appearance. आपको sawtooth appearance sigmoid और rectum पे नजर आ रही है. ठीक है. A transition yes point is seen at the junction between the sigmoid and the descending colon. तो ट्रांजिशन पॉइंट आपको इतना अच्छा इसमें क्लियर नहीं हो रहा, बट फिर भी अगर आप नोटिस करो ये वाले एरिया को, ये आपका ट्रांजिशन पॉइंट जहां पे आपकी नैरोइंग हो रही है. ठीक है, ज्यादा नैरोइंग. ये वाला एरिया देखो, ये एकदम डिस्टेंडेड था, ये एकदम नैरो होना शुरू हुआ है. तो यहां से आपका प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ है. ठीक है, तो जहां पे एकदम yes नैरोइंग होगी दैट इज योर ट्रांजिशन पॉइंट. ओके, we'll see further pictures as well. तो ये आपको क्या नजर आ रहा है, हर्षप्रंग का बेरियम एनीमिया, जिसमें आपको डिफरेंस ऑफ द कैलिबर यू विल गोइंग टू फाइंड आउट. मैडम आवाज नहीं आ रही. मैडम आवाज नहीं आ रही.